hosted by Asia Pacific Dental Students Association, Pakistan. I'm Dr. Malik Saeed Rao, your host. As you can see, our second speaker is finally here, and I'm sure everyone is excited to meet him. He's a legend in the industry, and someone with such a high repute does not need any introduction. However, I'll try my best to introduce him. He graduated from Fatima Jinnah Dental College, and later on he went on to do a Master's of Science in Oral Implantology from J.W. Goethe University, Germany. He is an NBDE board certified dentist and a diplomat of International Congress of Oral Implantologists. He is the president of Pakistan Dental Community, founder and director of Vanguard Dental School. He's famous for his massive social media presence as Dentist with a Camera on YouTube and his own name, Dr. Syed Mohammad Fazan on Instagram. Ladies and gentlemen, I present to you Dr. Syed Mohammad Fazan. Assalamu alaikum. Assalamualaikum, sir. Welcome, sir. Thank you very much for the invitation and for having me. And hello everyone. बहुत सारे लोग हैं, ऐसा लग रहा है मिनी जलसा हो सकता है इसमें तो. It's a good number of people on a Sunday. I'm happy to see. How can I see, by the way? Oh, acha, okay, I got it. Do I need to accept these people in, or someone else is doing it? No, sir, we're doing it. Okay, good, excellent. Just let me put. How do you? I sound like a 70-year-old. How do? एक second, I'm just trying to fix this so that I can see the screen. Yeah, वो खुद ही आप लोग सेटल करेंगे कि इसको बड़ा कैसे करना, छोटा? The view सर, that I see. जो स्क्रीन है वो आप खुद शेयर कर सकते हैं. यू कैन सी इन द टास्क बार बिलो एक ग्रीन कलर का आइकॉन है. उस पर आप क्लिक Yeah. करेंगे तो यू हैव द ऑप्शन ऑफ शेयरिंग योर स्क्रीन. तो कोई भी जो आप पावर पॉइंट या वीडियो प्ले करना चाह रहे हैं वो शेयर होगी सबके साथ. Okay, good. Share desktop, WhatsApp, Safari, Keynote. Okay. System settings. Sir, if you want, if you're having any technical issue, you can send the presentation to us and we can share it for you. आपकी जो माइक्रोफोन है वो ऑफ है सर, so we can't hear you properly. Chat box, I think अभी भी ऑफ है. वो लिखा था host has not allowed you to speak. Kindly be quiet. इसलिए फिर मैंने उसको unmute दबाने के लिए आपको बोल रहा था. You can hear me Sir, now? we have made you co-host. Yes, sir. Okay, Can good. hear you now. Now it's possible. Oh, Zaida, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? Walaikum salam, sir. Alhamdulillah, आप कैसे हैं? Good to see you here on Good. Sunday. Good. Thank you very much. Acha, first of all, thank you to Arsul and Zaida for trying to get me to do this. मैं सबसे पहले बोल देता हाँ मैं कर दूंगा, but it was extremely busy past few weeks. अब जाके थोड़ा सा रमजान का लोड जो है ना अब वो थोड़ा normalize हुआ है, and you know we have only one day left, and if you see me having little no content being uploaded, that means I have no time whatsoever except for मुंह खोलें मुंह खोलें मुंह खोलें मुंह खोलें मुंह खोलें, ट्रायल आया नहीं मुंह खोलें. So thank you very much for you know trying to get me here and finally being successful, and I'm sorry for being so difficult to get to. बस busy हुआ था. Apart from that, hello everyone, and I hope you're doing well. You can hear me clearly, right? You Yes. want me to do this in Yes, Urdu sir. or Yes, English sir. or Sir, Whatever anything? you It's like, okay. sir. mix Okay, रखें. good. फारसी स्टार्ट कर देते हैं. I can speak फारसी. अच्छा जी. Anyways, so
मुझे टॉपिक जो उन्होंने बोला था कि इस पे आप they gave me a list of topics and most of them sounded a little cliche for me to do because I had already done those before. And this medium serves as not just a platform for everyone else to grow, but also for the speakers to grow. Because अगर एक ही जो है ना वो आपने बुक रटी हुई हो और आप जब मुंह खोलें आप सबसे पहले यही बोलें, तो then you lose your drive to keep moving forward. Because there is only so many times. It's like fake it till you make it. सुना ना आपने? ठीक है ना? तो अगर आप एक ही चीज को बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, वो परसिस्टेंसी में दैट जस्ट शोज परसिस्टेंसी अंटिल इट्स ऑब्वियस दैट यू मेड इट राइट. सो अगर आप एक ही चीज को मोनोटोनस बोलते रहेंगे, एक तो वो चीज रेलेवेंस भूल जाती है, एंड दूसरा ये कि इफ इट्स समथिंग दैट you're not doing but you're only telling other people to do, so then there's only so many times that you can do it, and then eventually you would have to do some of those because you're like यार आप ये बंदा ऑनलाइन तो कुछ और बोल रहा है, ऑफलाइन तो कुछ और बोल रहा है. So you can't fake it. So you have to become that person. So this is a good topic. The topic of my presentation is ऐसा लग रहा है कि वो है हाउस ऑफ की न्यू वो नहीं होती. I'm from Department of Surgery. I'm Dr. Fazan. The topic of my presentation is today is patient-centered care. अच्छा, the audience is all dentists या students भी हैं? Sir, primarily house officers, young dentists, and dental students, final year dental students, चलो third year. परफेक्ट. शुक्र है आपने पीजीज और वो नहीं बोला, क्या कहते हैं, HODs and dentists. That usually sounds like a brochure. Okay, who can attend? Everyone, like literally everyone. But we're going to write down every single category: first year, third year, second year, final year, house of the dentist, mother, father. Everyone can attend basically, but we're writing. But I am happy that एक younger lot है because that's who I mostly resonate with. Because when you grow up, na, you become a little rigid. दैट्स व्हाई पीपल से कि जो करना है आपने पहले करें, बाद में आपकी जो भी आप चीजें करते हैं वो थोड़ी सी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है राइट. सो दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज हैप्पी टू कनेक्ट विद द यंगर लॉट. आई एम ऑल्सो यंग बट पीपल डोंट ट्रीट मी एज देयर फादर, दे मोस्टली ट्रीट मी एज एन एल्डर ब्रदर. ठीक है, सो दैट मीन्स कि मैं आई कैन कनेक्ट टू देम ऑन अ लेवल क्लोजर टू देम. ठीक है, योर एचओडी माइट क्या मोर माइट नो मोर देन मी. सही है, बट यूजली यू डोंट लिसन टू द एचओडी कि यार अप्पू की कैटेगरी के ऊपर निकल गया अभी, अब यार समझाने वाला नहीं है राइट. सो पेशेंट सेंटर्ड केयर, माय जॉब इज आल्सो टू टेल यू कि इसका मतलब क्या है. इज नॉट जस्ट अ प्रेजेंटेशन कि मैं आया, प्रेजेंटेशन नजर आई, दो चार स्लाइड दी और मैं निकल गया, खत्म, मेरी प्रेजेंटेशन हो गई, मैंने स्टोरी लगा दी, हैड फन अमेजिंग सेशन ऑन संडे. किसी को कुछ समझ नहीं आई और पेशेंट सेंटर्ड चार पांच लोगों को सर्टिफिकेट मिल गए और वर्कशॉप भी हो गई बेहतरीन. लाइफ इज गुड. सबके अपने अपने बॉक्स में स्टोरी लग गई. इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, मैं भी कल पिछले हफ्ते उनको दे रहा था डेंटिस्ट्री पॉडकास्ट. आई वाज इन लाहौर फॉर 2 days. तो उसके अंदर मैं एक बात बता रहा था कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर पे हमारा जोर नहीं होता, हमारा तो होता है इंफॉर्मेशन डिलीवरी. चाहे आप हो सुबह, काफी सारे टीचर्स का ही होता है. इंफॉर्मेशन डिलीवरी आए, मेरा काम है पढ़ाना. अब पहाड़ में जाए, संडे ओके, आई कैन यूज द लैंग्वेज ओके, देयर आर आल्सो सारे बच्चे यंग है. ठीक है, अब यही ना कोई रिकॉर्ड कर ले, सर कह रहे हैं पहाड़ में एनीवेज. सो इंफॉर्मेशन डिलीवरी आए, पढ़ाया, निकल गए, पीछे चार लोग स्नैपचैट पे लगे हुए हैं, दो फेसबुक पे लगे हुए हैं, जी जी सर ये जी जी वेरी इंपॉर्टेंट गुड, आप पढ़े पढ़े, अब हम अपना काम कर रहे हैं, दो लोग वैसे ही पीछे अकेले बैठे हुए हैं. तो एनीवेज, वर्कशॉप में ये होता है कि आते हैं स्पीकर है, वो अपनी मोटर बेचता है और निकल जाता है. ठीक है, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे अच्छे कोर्सेज भी होते हैं. बाय द वे आई एम नॉट सेइंग हर जगह हर चीज बुरी होती है, मैं बहुत अच्छा हूँ. आई एम जस्ट सेइंग कि उसी तरह आज का जो टॉपिक है, मैं आऊँ देऊँ और चला जाऊँ, दैट वोंट रियली मेक अ डिफरेंस. सो पेशेंट सेंटर्ड केयर का मतलब ये है, दिस इज एसेंशियली दैट वर्ड दैट्स मिसिंग फ्रॉम योर डेंटिस्ट्री, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, ऑन अ लार्ज स्केल, व्हेन योर डेंटिस्ट्री इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यू आर स्टिल यंग. आपकी डेंटिस्ट्री में मुस्तफा इस वक्त लोड कर रहा है. मुस्तफा इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू बी नोटिस्ड. दो तीन दफा हमने स्क्रीन ऑन ऑफ कर चुके हैं कि सब इसको छोड़ के हम यहाँ देखेंगे मुस्तफा की क्या कह रहा है. मुस्तफा आप ठीक हो? मुस्तफा, यू ओके?
सर वो आई थिंक पार्टिसिपेंट्स माइक नहीं ऑन कर सकते। अच्छा, ओहो, बस तुमने यूं कर दिया, हम समझ गए कि यू लुकिंग गुड। ठीक है। अच्छा जी, एनीवेज, सो आपका इस वक्त जो केयर है वो केयर नहीं है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अभी अभी आप उस फील्ड में आए नहीं है। आपने सुना है ना, आपने अपने अब्बू अम्मी से भी या किसी बड़े से कि जब ये होगा ना तब तुम्हें पता चलेगा, जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे ना तब तुम्हें, जब तुम ये होगे। वो क्यों कहते हैं? आप जितने भी सुगर बहुत अच्छे और रिस्पॉन्सिबल हों, मैं आपको अलाइनर नहीं देने वाला 16 साल की उम्र में। आई एम सॉरी, डज इट वर्क? यस, आई विल नॉट गिव इट टू यू बिकॉज यू आर इनहेरेंटली नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं अभी, कोई नहीं। ठीक है। तो वो आपकी फीलिंग आ ही नहीं सकती जब तक आपका अपना जो नहीं है, वो नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, देन यू डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू डोंट हैव टू डू। ठीक है। अभी जो आपके ऊपर है, आपके ऊपर पेशेंट केयर है ही नहीं, आपके ऊपर है लॉग बुक केयर। ठीक है। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई लॉग बुक नाउ। चाहे वो एचओ जो है वो सोच रहे हैं कि हम लोग अब डॉक्टर बन गए, जो कि वो बन गए, माशाल्लाह, बड़ी बात है, विच इज गुड। दिस इज द ईयर दैट यू विल बिकम डॉक्टर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। ऑफ कोर्स आपको डिग्री मिल गया, आप ठप्पा लग गया है, बट एक महीने पहले अगर आपके हाउस ऑफ स्टार्ट हुई है तो आप में और फाइनल ईयर जिसके खत्म होने वाला है उसमें कोई फर्क नहीं है, एक एग्जाम का फर्क है। उसने पिछले महीने एग्जाम दिया था, पास हो गए, अब जैसे ही पास हो गए एकदम से थोड़ी उसके सब कुछ आगे। द मैट्रिक्स, वो देखिए आपने, मैट्रिक्स में लगाता है, वो कहता है शो मी कंग फू। हो गया, आ गई मुझे एकदम से, एक एग्जाम दिया, 49.5% आए, 50 पास हो गया, अब मैं पास हो गया हूँ। सो पेशेंट केयर इज स्टिल मिसिंग। पेशेंट केयर का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो ये वो ये कि पेशेंट तो बाद में आएगा। पहले आपने मुझसे कोई बोल रहा था कि सर हाउसों में पैसे नहीं है, शाम में नौकरियां नहीं मिल रही, तो हम क्या करें? तो मैंने जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी क्रिएटिंग बेटर डेंटिस्ट। मैंने कहा अच्छा, इनसे सोच समझ के बोलना पड़ेगा, ये तो उल्टा हम ही सुनाने शुरू शुरू ना कर दें। तो क्योंकि जब तक आप खुद काम के नहीं है तो आप अगले बंदे के ऊपर जो काम करेंगे वो भी काम का नहीं होगा। पेशेंट केयर तो तब आएगा जब आपको आप पेशेंट आएगा। पेशेंट तो अभी आपके पास जो आ रहा है वो आपके पास नहीं आ रहा, वो उस बिल्डिंग में आ रहा है, तो आपका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। विच इज द सब हेडिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। अब पता नहीं, मैं खास ये जो 150 लोग ऑनलाइन है, इसमें से 100 जो है वो लड़के आए, इससे पता नहीं कौन सी रिलेशनशिप स्ट्रांग बन रही है पेशेंट्स के साथ। वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिकल प्रोफेशनल रिलेशनशिप, अभी उसकी समझ आ जाएगी आगे जाके। ठीक है। तो एनीवेज, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको ये बगैर डेंटिस्ट्री भी समझ आ जाएगा। रिलेशनशिप्स आर बिल्ट ऑन ट्रस्ट। अब जैसे मैंने ट्रस्ट बोला, जायदा हैज लेफ्ट द कन्वर्सेशन। मैंने कहा ये टॉपिक तो अब आई थिंक हमसे बाहर निकल रहा है स्कोप में से, ट्रस्ट की बात शुरू कर दी है सर ने। एनीवेज एनीवेज, सो रिलेशनशिप्स आर बिल्ट ऑन ट्रस्ट। ट्रस्ट जो है वो कैसे डेवलप होता है, पहले आगे चलते हैं चले। मेरी प्रेजेंटेशन यूजली इज more visual and more interactive rather than what is on the screen. So people who are joining and rejoining and leaving and joining, they will lose track of what I'm saying, because whenever I say something, it has to be in a whole, taken in a whole context कि क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसलिए जो भी प्रेजेंटेशन टीवी उस पर नजर आ रही है स्क्रीन पे, आपको ना भी देखें तो कोई मसला नहीं है, बस गूगल से जो बेहतर लोग लगे उनकी तस्वीर लगा दी है। इस पे जो लेफ्ट पे वर्ड लिखा है वो ट्रस्ट है। रिलेशनशिप बनती है ट्रस्ट पे। ट्रस्ट कब आएगा? ट्रस्ट अब आएगा और पीछे जाएंगे, मैंने आपको बताया ना, पहले आप इवॉल्व होंगे तो फिर आप अच्छी डिलीवरी कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल। ठीक है। प्रोफेशनल आप तो आप बन रहे हैं अब विद टाइम, लेकिन पहले आप इंसान तो बने ना। तो आप इंसान बनने में सबसे पहला जो आता है ना वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट जो है, जब तक पेशेंट आपसे ट्रस्ट नहीं करेगा, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट भी सही नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस भी सही नहीं चलेगी, ना वो और कुछ काम करेगा, ना वो कुछ टाइम पे आएगा, ना वो किसी को रेफर करेगा, ना आपका काम अच्छा होगा। और जब ये बहुत सारे साल गुजर जाएंगे ना, तो फिर आपको समझ आएगी कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही। ठीक है। तो ट्रस्ट जो है वो कैसे डेवलप होगा? पहली चीज, ऑनेस्टी। अब आई डोंट नो व्हाट यू गैट एक्सपेक्टेड when you thought I would be delivering this lecture and it's turning out to be a sermon, but I'm just telling you वो वाले पॉइंट्स हर प्रेजेंटेशन में, आपको पूरी प्रेजेंटेशन रटने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हर बंदा कोई एक ऐसी अच्छी बात कर जाता है जो आप नोट कर लेते कि यार ये मुझे समझ आया, बाकी
वो नहीं देखी आपने, वो जो मीम है, जो नाना पार्टिकल टाइप वो जो है, वो आ रहा है, बाकी छोड़, सिर्फ ये एक चीज ले ली। तो वो आप इनमें से ले सकते हैं। ऑनेस्टी, दैट्स नंबर वन। जब तक आप सच नहीं बोलेंगे ना, अब हम किसी से ट्रस्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, ठीक है, तो अब जब किसी को ट्रस्ट करना स्टार्ट करें तो आप सच बोलेंगे तो ही ट्रस्ट होगा। अगर आपको लगता है कि आप झूठ बोल बोल के आप किसी का ट्रस्ट हासिल कर लेंगे, नो, पीपल आर नॉट स्टूपिड एनी मोर। ठीक है, वी हैव सोशल मीडिया नाउ, सो एवरीवन हु इज क्या कहते हैं स्टूपिड, दे नो, ठीक है। एंड somebody who's faking it, they can double check, they can check on the internet, they can check on chat gpt, they can check with another dentist, they can check with their own family, and then even if they don't want to check, और अगर फोन रोज उठा के बोलूं मैं आज डेंटिस्ट के पास जाऊंगा, डेंटिस्ट के पास जाऊंगा, डेंटिस्ट के पास जाऊंगा, अब जब फोन बंद करके वापस खोलेगा, सारे एड्स डेंटल वाले आ रहे होंगे, सारे एड्स। तो अगर वो नहीं भी सुनना चाह रहा, तो डॉक्टर जायदा वारसी क्लिनिक का एड चल रहा है और उसमें लिखा हुआ है कि इम्प्लांट की डील लगी हुई है और डॉक्टर फैजान तो इतना महंगा दे रहे हैं, अब वो मुझसे पूछेगा, तो ट्रस्ट डेफिसिट है। ठीक है, तो इफ यू आर चार्जिंग फॉर समथिंग, आप यू विल बी अपफ्रंट अबाउट इट कि क्या चार्जेस हैं और क्यों हैं। इफ यू डिलीवरिंग और प्रपोजिंग अ ट्रीटमेंट प्लान, तो आप यू विल बी ऑनेस्ट कि यार ये चीज इस पेशेंट के लिए बेस्ट है। वो ऑनेस्टी पहले अपने अंदर आएगी कि क्या वाकई बेस्ट है या नहीं है, ये मेरी जेब के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो वो मैंने इसलिए इस पे वीडियो भी बनाई थी। जब तक आप सच नहीं बोलेंगे अपने आप से, और उससे आपकी इससे आगे रूम में बात जाएगी नहीं, पेशेंट आएगा नहीं, पेशेंट सेंटर्ड केयर है ना, पेशेंट तक ही बात नहीं है, वो आपके पीछे ही निकल जाएंगे बाहर, क्योंकि आपने सच नहीं बोला। अगर पेशेंट को इम्प्लांट की जरूरत नहीं है, तो आप उसको बता देंगे कि नहीं है जरूरत। क्यों, मैं आपको बता, आई जस्ट गिव यू 2-3 एग्जांपल्स दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर दोज ऑफ यू हु वांट टू ग्रो एंड आल्सो दोज ऑफ यू हु वांट टू अर्न, दोनों बातें। ठीक है, अब मैं एक परफेक्शनिस्ट आदमी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सारा काम वो लेवल का हो जो मैं अपना कर रहा हूँ, या मेरा चलो ना भी हो, मैं अपनी अम्मी का कर रहा हूँ, सबका ही चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे पेशेंट को एज एन इंसान देखना है, पेशेंट को एज अ कैश काउ नहीं देखना। एंड व्हाट हैपेंस इन दैट इज दैट, जब पेशेंट को आपको लगता है कि अभी आपका, मैंने बताया ना, पेशेंट केयर मिसिंग है, बिकॉज अभी आपको 20-22 साल हो गए, मतलब आप ग्रेजुएट हुए हैं। अभी पेशेंट केयर दूर की बात, अभी आपको पेशेंट चाहिए जस्ट फॉर मनी। अभी आप कौम की खिदमत करने के लिए डेंटिस्ट नहीं बने, हो सकता है 1% बन जाए। आई डिड सम, आई स्टिल डू सम सोशल वर्क थ्रू द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन पीडीसी की, some people might know, some people don't. 3,000 मेंबर है उसके, वी डू अ लॉट ऑफ आउटरीच प्रोग्राम्स। फिलहाल पॉज हुआ हुआ है। सो आई सीन पीपल एंड आई हैव इंटरेक्टेड विद पीपल, द फर्स्ट थिंग दे डू वांट टू डू राइट नाउ, आप पोल लगा लें अपने इंस्टाग्राम पे, एंड व्हाट डू यू वांट टू डू, अर्न इज द नंबर वन एम। पेशेंट केयर अभी नहीं आया, पहले पेशेंट आ जाए, सर आई विल टेक केयर ऑफ पेशेंट, आप बस पेशेंट भेजें, मैं बहुत केयर करूंगा उसका। आप पेशेंट भेजें पहले, वो मेरी केयर करेगा, पैसे मैं उसकी केयर कर लूंगा, और मैं मसाज भी कर दूंगा शक्ल पे अगर उसका टीएनजे में दर्द हो रहा हुआ। लेकिन जब तक आप सच नहीं बोलेंगे, वो पेशेंट नहीं आने वाला। क्यों, अब मैं आपको बताता ना एग्जाम्पल। इफ फॉर एग्जाम्पल पेशेंट डजंट नीड द ट्रीटमेंट, यू नीड द पेशेंट, बट द पेशेंट डजंट नीड ट्रीटमेंट। परसों की बात है, पेशेंट आया, उसको पता, उसने दे वांटेड, उन्हें इंटरनेट पे देख लिया, स्माइल मेकओवर। हाय, ये वर्ड से अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता चिढ़ होती जा रही है मुझे, मतलब डेंटिस्ट्री खत्म हो गई है, उसमें सिर्फ हर जगह लिखा हुआ है बस बिफोर आफ्टर टीथ व्हाइटनिंग स्माइल मेकओवर स्पेशलिस्ट। तब थोड़ी देर में शेड में आ जाएंगे हम, B1 शेड स्पेशलिस्ट, कैनाइन स्पेशलिस्ट, मतलब क्या जो, क्या डॉक्टर जो कैनाइन बनाते हैं उसको स्पेशलिस्ट, मैं नीचे लिख दूंगा अपनी सीवी में जाके ना, आई कैन मेक रियली गुड कैनाइंस, बट एनीवेज। सो मैंने पेशेंट को बोल दिया आपको कोई जरूरत नहीं स्माइल स्माइल में को, आप स्केलिंग कराएं और आप अलाइनर लगा दें फॉर लाइक 6 मंथ्स इश, आपका कैनाइन जाएगा, थोड़ा सा अंदर चला जाएगा, एंड जो रोके आप उसमें वैसे बहुत बेहतर हो जाएगी। उसके बाद आप वाइटनिंग कहेंगे, आपको वाइटनिंग कर देंगे, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। उनको मना कर दिया उन्होंने। वो आई थी बेसिकली सिर्फ कोटेशन लेने के लिए कि हम कितने का देंगे, हमने ट्रीटमेंट ही मना कर दी। ठीक है, अब उस वक्त मेरे सारे कॉल डेंटिस्ट भी थे, कहेंगे यार ये पेशेंट भागेगा, मैंने कहा जाने तो भाई, भागेगा तो भागेगा, हमारा नहीं था। मुझे, यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू आर डूइंग एन इंटर्नशिप विद मी कि मैं नहीं चाहता कि पैसे आ जाएं, पैसे इवेंचुअली आ जाएंगे। ठीक है, तो एनीवेज, तो अब वो नहीं किया, उनको मना कर दिया। जब मना कर दिया, 3 days later he brought 4 patients with him, his mom, his dad, his sister,
and his cousin, all of them paying patients for multiple other treatments because and then उनके अब्बू है, ठीक है। अब अच्छा ये होता था कि पहले when we were in teens we were today's 10-year-olds, if that made sense। अब आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा इवॉल्व कर गए हैं, फोन बहुत पहले आ गया है और अकल बहुत पहले आ गई है। मेरी 3 साल की बच्ची वो यूट्यूब किड्स खोल के सही वाली जगह पहुंच जाती है जो उसने प्ले करना। पापा मैं ये कह रही थी, अच्छा सही है, गुड, वेरी नाइस, ठीक है। तो अब वो मैं मुझे क्या पता, मैं तो 15-18 साल में फोन मिला था। सो अब जो है पेशेंट के जो अब्बू हैं, तो मैं बता रहा था कि जब पेशेंट आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट इवन नो हु देयर पेरेंट्स आर और हु व्हाटएवर। वो आते हैं, कराते हैं, दे कॉन्फिडेंट कि हमने काम कराना है, दे पे एंड वो चले जाते हैं। कोई प्रॉब्लम होता है तो उनके अब्बा अम्मा पिक्चर में आते हैं कि हमारे बच्चे ने काम कराया था। सो दे केम एंड दे सेड कि हमने बहुत सारे लोगों को दिखाया है मेरे बच्चे ने, एंड देन ही शॉर्ट लिस्टेड 2-3 प्लेसेस जहाँ से इसको काम कराने चाहिए। आपका उसने एक्सक्लूड कर दिया था कि ये वो कर ही नहीं रहे। तो मैंने अपने बच्चे से कहा कि यहाँ चल के पहले मुझे लेके जाओ कि इन्होंने क्यों मना किया है। सो देन वेर हियर टू गेट द ट्रीटमेंट डन बाय यू। सो इससे दो बातें होती हैं, एक यू डिड व्हाट वाज बेस्ट फॉर द पेशेंट, नजर आ रहा है ट्रस्ट कर रहा है इसीलिए तो बाकी सबको लेके आ गया। और आखिरी, आपने एक पेशेंट को नो बोला सच बोल के, 4 पेशेंट आपको यस वाले आ गए। तो ये आपको मॉनिटरी भी हो गया, पेशेंट के लिए भी बेहतर हो गया और आपका दीन ईमान भी सीधा है कि यार सुकून में हूं, मैं वही कर रहा हूँ जो मैं सही सोचा था, फिर भी पैसे आ रहे। राइट, सो द ट्रस्ट विल नॉट बी डेवलप्ड अंटिल यू आर ऑनेस्ट, पहली बात। दूसरा, ऑनेस्टी से वो हो गया। अब दूसरा ये कि आप बहुत अच्छे ऑनेस्ट लोग हैं, बहुत सर, मैं आज तक झूठ नहीं बोला, मैं बहुत सीधा आदमी हूँ, बहुत ही, ठीक है, मान लिया। नहीं माना वैसे मैंने, लेकिन मैंने मान लिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि आप बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। डेंटिस्ट्री इट्स नॉट आईआईटी। यू कैन नॉट सिट बैक बिहाइंड अ कंप्यूटर एंड हैव अ वेरी नाइस प्रैक्टिस। रेयर होगा, रेयर में जब जब भी मुझे लगता है ना कि बजाय से कि उल्टी पड़ जाए, कोई एक बंदा नीचे आ जाए, सर नहीं मैंने तो आज तक कुछ बोला ही नहीं, मैं तो बिस्तर में लेटा रहता हूँ, लेकिन पेशेंट बहुत सारे आते हैं। ठीक है भाई, आपके पास आते होंगे, लेकिन वो जो है मोस्ट ऑफ द पीपल, दिस इज अ प्रोफेशन वेर यू हैव टू बी एन एक्सट्रोवर्ट टू मेक इट बिग। किसी भी इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी को देख लें, वो एक्सट्रोवर्टेड पोस्ट कर रहा है चीजें, इसलिए तो वो क्या कहते हैं आगे जा रहा है। इफ यू आर इंट्रोवर्ट, प्रैक्टिस बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट। कुछ लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट पब्लिकली होते हैं, घर आके दरवाजा, अब मुझसे को बात ना कर, अब हीलिंग टाइम शुरू हो गया मेरा, मैं जा रहा हूँ बाथरूम में 1.5 घंटे ऐसे चुपचाप बैठा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों से मुझे बहुत इंफॉर्मेशन मिल गई और अब बस आई वांट टू शेक दिस ह्यूमन प्रेजेंस ऑफ मी। यू नीड टू फेक दैट। जब तक आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप जितने भी अच्छे हो, वो आपसे बैक्टीरिया की डेफिनेशन थोड़ी पूछने आ रहा है, वाइवा लेने थोड़ी आ रहा है आपका, वो आपसे बात करने आ रहा है। तो आपको पता है कि बहुत अच्छी आप ट्रीटमेंट को रैंक कर रहे हैं, आपकी ट्रीटमेंट प्लान है भी बहुत अच्छी, लेकिन अगर आप बोल ही नहीं सकते तो लोग ट्रस्ट नहीं करते। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। लोग कहते हैं ना, अगर नहीं बोल रहा इसका मतलब हाँ ही है, एक बात। दूसरा, बोल ये चुप रहता है, ये बहुत बहुत तेज है, ये बहुत तेज है, ये चुप रहता है हर वक्त, करता सब कुछ है लेकिन बस बोलता है, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट नोबडी स्टूपिड। एवरीबडी नोज दिस कि हर बंदे का घर चल रहा है, हर बंदा सारे काम कर रहा है। आपकी क्लास में डेंटिस्ट भी होंगे, आपकी क्लास में जो है वो और भी काम कर रहे होंगे, आपकी क्लास में कैसे लोग होंगे जो एनुअल डिनर पर नजर आएगा कि ये वही बंदा है, ये मेरी क्लास में थी, ठीक है। तो एवरीबडी नोज फ्रॉम अ माइक्रोकॉस्म ऑफ योर क्लास की विच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड कि यार हर बंदे का काम चल जाता है। कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि आप उससे कहेंगे जो मुझे 4 लाख रुपए दे दो, बस मैं कल दे दूंगा, कद्दू, थैंक यू, आप मुझे परसों दे दीजिए लेकिन मैं दूंगा नहीं। ठीक है, एवरीबडी नोज दिस। सो एक बेस लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है ना, वो इवॉल्व करके ऊपर आ गया है। आप, हेलो, आवाज आ रही? जी सर, आ रही है। या सॉरी। सो एनीवेज, अब नेक्स्ट उस पे आ जाएं आप, क्योंकि ये बात है पेशेंट सेटिस्फैक्शन की ना, एंड है इस प्रेजेंटेशन में, एंड इस जब पेशेंट सेंटर्ड केयर करेंगे तो पेशेंट सेटिस्फैक्शन होगी तो आपकी डेंटल प्रैक्टिस चलेगी। मैं आपसे सबसे पहले कहता था कि अगर आप गलत प्रोफेशन में, फिर प्रैक्टिस आपकी नहीं चलेगी। गलत प्रोफेशन का मतलब अगर आप में वो ट्रेड्स ही नहीं है कि इस प्रोफेशन में लोगों की सुने और उनसे बात करें, उनके लेवल पे कनेक्ट करें,
और फिर वो जो चाह रहे हैं, अगर वो गलत है तो उनको समझाएं कि ये नहीं आपके लिए बेहतर, और अगर वो फिर भी ना माने तो आप मना कर दें। मैं बार बार वही पीछे स्लाइड रिवाइंड कर देता हूँ हर हर टॉपिक के ऊपर। एनीवेज, मैं बता दूं आप फायदे पे आते हैं क्यों। एक दफा पेशेंट से आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, वो आपके लिए जान देने के लिए तैयार है। वो आपकी फिर कल्ट फॉलोइंग हो आती है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपने पेशेंट को आज तक हर चीज में नो बोला, यस बोला, इस जगह नो बोला, यस बोला। एक पेशेंट है हमारी, वो आती है हर 4 महीने बाद या 5 महीने बाद टीथ व्हाइटनिंग के लिए। कहता हूँ भाई, अगर आप पेट्रोल भी पीती है ना कॉफी की जगह, तो 4 महीने बाद आपको व्हाइटनिंग की जरूरत नहीं पड़ सकती। सॉरी, आप 1 साल बाद आएगा। तो 1 साल बाद ही कहती अब तो मैं करा के जाऊंगी, फिर भी जरूरत नहीं थी। फिर भी जरूरत नहीं थी तो मैंने नहीं किया। शी कीप्स कमिंग बैक, शी कीप्स सेंडिंग पेशेंट्स, ऑल तो उनका काम नहीं होता। वही वाली बात वापस। अब ट्रस्ट से ये होगा, आगे बढ़ेगी बात। ट्रस्ट के बाद ये है कि जब पेशेंट आपको ट्रस्ट करेगा ना, तो उसको समझ आ जाएगा कि मेरी ये बेस्ट इंटरेस्ट है इस डॉक्टर के पास है। डॉक्टर थिंक्स ऑफ मी एज वट एवर इज बेस्ट फॉर मी, एंड मेरे बेस्ट इंटरेस्ट इसके दिमाग में हर वक्त है। पहली बात। दूसरा, और आपने जब कम्युनिकेट करके उसको बताया कि भाई मैंने स्केलिंग क्यों करनी है, पहली बात एक्सप्लेनेशन देंगे ना, कम्युनिकेट करके पूरी डिटेल्स उसके सामने रखेंगे। पेशेंट सेंटर्ड है, ओपीडी नहीं है कि आपको किसी से कोई बात नहीं करनी। मेरी बारी आ गई, रोल नंबर 99, थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन। सर, मैं आ गया, निकाला। अब पेशेंट जिंदा है मरा हुआ है, 6 घंटे लगे, 2 घंटे लगे। मैं तो सर्जरी सीखनी है, मैं सर्जरी करूंगा। फिर आगे शील्ड आ गई, निकल गया। तड़प रहा है पीछे, और पीछे दूसरा बंदा है, उसकी ड्यूटी लगी हुई है, तुम उसको वो दोगे पोस्ट ऑफ। सुखना स्टॉल से कुछ पीना, सेकंड नहीं पीनी, हमें एक दिन गर्म चीजें नहीं पीनी है, नहीं, ठीक ओके। यही तो नहीं करना, यही। वो नहीं सुन रहा आपकी, मैंने बताया ना, पेशेंट डिलीवरी, इंफॉर्मेशन डिलीवरी में समझ आए ना है, वी डोंट केयर। ठीक है। तो जब आपको समझ आ जाएगी उस बंदे को कि ये जो है मेरे जो भी बता रहा है वो मेरे लिए यूजफुल है, और मुझे डिटेल्स बताई हैं, और मुझे जो डिटेल्स बताई हैं उनका फायदा मुझे ही है, और ही कैन सी दिस, तो फिर वो खुद भी अपना ख्याल करेगा। समझ आई, क्योंकि मैंने इसको बताया कि ब्रश क्यों इस तरह करना है, लॉजिक क्या है ब्रश करने की। तो फिर जो है वो ब्रश भी करेगा, क्योंकि उसको सॉरी क्या हुआ, मुस्तफा का मैसेज है। हो सॉरी, मैसेज आ रहा था, मैं बीच में आ गया। एनीवेज, सो तो फिर वो अपना ख्याल खुद करेगा। अब बहुत दफा ये होता है कि आप पेशेंट, मैंने बताया ना, हर बंदा एक तो थोड़ा अक्लमंद हो गया, यू कांट फूल एवरीवन। तीसरा, we're ऑल वेरी cynical nowadays. Nobody takes anything at face value. और अगर कुछ इफ इट लुक्स टू गुड टू बी ट्रू, नहीं, 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 कुछ तो है डॉक्टर फरहान के पीछे, कुछ एजेंडा है। ऐसा नहीं हो सकता, फ्री में तो नहीं कुछ देखो कहीं लिखा होगा, टू अटेंड माई कोर्स, एंड में टू अटेंड द रियल कोर्स, वो यहाँ है, या कुछ ऐसी कोई कैच होगा। तो लोगों को सिनेकल हो गया। अगर आपके पास आगे कोई ऐसी 1 लाख रुपए का बैग पकड़ा दे, यू बी लाइक नहीं भाई, क्यों दे रहा है मुझे, क्यों, वाई इज दिस बैग बिंग ऑफर्ड टू मी फॉर फ्री, व्हाट इज द कैच। न, देयर इज नो फ्री लंच, कुछ ना कुछ चाहिए इसको, राइट। तो वो टाइम लगता है। ट्रस्ट इज डेवलप्ड विद ऑनेस्टी एंड देन टाइम फैक्टर। जब वो थोड़े दिन में स्ट्रेस होगा, थोड़े महीनों में, थोड़े सालों में, तब जाके उसके अंदर दिमाग में आ जाएगा कि यार दिस थिंग इज जेन्युइन। तो फिर वो खुद भी अपना ख्याल करे। डॉक्टर फैजान इसलिए नहीं कह रहा है कि कोलगेट ऑप्टिक वाइज टूथब्रश करो क्योंकि जस्ट बिकॉज इनको पढ़ाया है, जस्ट बिकॉज ये उसके ब्रांड एम्बेसडर है। एक्चुअली वो मुझे नजर आ रहा है कि वो बेहतर है, और वो खुद भी इसी से कर रहे हैं। तो फिर वो खुद भी अपना ख्याल करेगा। जब वो अपना ख्याल खुद भी करेगा, देखें आप लोग, अब इसमें इस वक्त दो लोग अलग अलग सोच रहे होंगे। एक चीज वो ये सोच रहे हैं कि यार अगर वो खुद ख्याल कर लेगा अपना, तो मेरा ख्याल कौन कौन करेगा। आपका ख्याल फिर भी होता रहेगा, बिकॉज पेशेंट ने स्केलिंग के लिए आना है। पेशेंट जितनी दफा भी स्केलिंग करा ले, आपने ब्रश कर ले, आपकी जरूरत फिर भी रहेगी, राइट। और वो फिर दूसरों को भी रेफर करेगा, राइट। तो इम्प्रूव हेल्थ आउटकम सिर्फ तब होगा जब आपने उसको सब बताया, उसको जरूरत बताई, उससे कम्युनिकेट किया कि भाई क्यों ये जरूरी है। तो अब वो अपना ख्याल खुद भी रख रहा है, बिकॉज नाउ यू डेवलप्ड रिलेशनशिप ऑन अ स्केल 1 to 10 पे 2 में आ गए। 2 में आ गए कि यार नहीं, ये बंदा जेन्युइन है। विद टाइम वो 3 4 5 वो अलग अलग स्टेप्स में भी आगे आएंगे, तो आपको समझ आएगा कि कैसे यू कैन स्केल अप इन रिलेशनशिप पेशेंस के साथ। ठीक है।
ओके, आगे चलें। सही। अब ये दिस जितने लोगों को आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाएगी ना, उन लोगों को समझ आएगा कि ये तस्वीर, अब जैसे फाइनल ईयर, वो थर्ड ईयर, कोई अंडर ग्रेड वाले देख रहे होंगे, वो देख रहे होंगे रिजल्ट की शीट के साथ इस तरह खड़े होते हैं सारे लोग। यार क्या सी, मेरा क्या है, तुम्हारा क्या है, किसका है क्या नहीं है, या ग्रुपिंग हुई हुई है तो ग्रुप में किसका क्या नाम है। अदरवाइज यू डोंट सी देम स्टैंडिंग लाइक दिस एक साथ। कोई एक प्रोजेक्ट साथ में सबको दिया हुआ ना, तब वो इस तरह खड़े होते हैं। क्लिनिक में ये रोज की तस्वीर है कि वो, अच्छा 3 बजे बुलाया तो 4 बजे क्राउन नहीं है उनका। अच्छा नहीं, उनको आगे कर दो, नहीं यार वो आप पेशेंट है ना, वो बहुत टुन करते हो, उसको आगे नहीं कर सकते, आप उसको उसको पीछे करें। काम नहीं होगा। एक फायदा मैं आपको आउटराइट बता दूं, अगर पेशेंट के साथ आपकी एक लेवल 2 पे वो बन गई है रिलेशनशिप, तो फिर वो समझता है कि क्या प्रॉब्लम्स है। वो समझता है कि मेरे साथ इस चीज में आज तक इन्होंने जो है कोई दो नंबरी नहीं की। तो अब ये जब बोल रहे हैं कि यार मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कोई एक काम बोलूं जायदा को, और मैं आज तक किसी को नहीं, इनसे कभी बात ना हुई हो, यार ये कर दो, नो नॉट रियली। फिर आप, मैं जायदा के साथ ट्रैवल कर लिया हो, या मैं जायदा के साथ 2-3 कॉन्फ्रेंस करा लियो, अब अगर मैं से कुछ मांगूंगा तो ये शर्माएगी नो बोलते हुए कि यार इनका काम है, अच्छा कर ही देती हूँ। राइट। तो जब आप फिर पेशेंट को कॉल करेंगे कि यार आपका क्राउन अभी नहीं आया, या पिछले वाला पेशेंट लेट हो रहा है, तो आपको ये फिक्र नहीं है कि पेशेंट भाग जाएगा, आपको ये फिक्र नहीं है कि पेशेंट को आग लग जाएगी, जो है वो पेशेंट बिल्कुल तड़पना शुरू हो जाएगा, या वो गुस्से में आ जाए, कोई बैड मार्केटिंग करेगा आपके लिए, या आपको स्ट्रेस है। आपने बस कॉल करी, ज्यादा आपके क्राउन अभी नहीं आया है, उसको पता है पहले से कि यार ये जेन्युइन बात हो रही है, और उसमें देर लग गई, वो इंप्रेशन सही नहीं आया, या वट एवर। सो दैट मेक्स योर प्रोग्रेस, दैट मेक्स योर प्रैक्टिस की जो एनवायरनमेंट है वेरी हेल्थी एंड प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट। बिकॉज पेशेंट को जब बोलेंगे सेकंड इंप्रेशन के लिए आ जाए, तो वो आ जाएगा, क्योंकि नोरी बोलता है इतने आराम से, उनके साथ काम सही हो रहा है। कभी कभार इरिटेट होगा, सही है, लेकिन अब आपने पेशेंट के साथ कनेक्ट कर लिया ना, उसको आप जानते हैं, वो आपको जानता है, तो आप जो भी कहेंगे वो करने के लिए तैयार है। तो आपकी एफिशिएंसी प्रैक्टिस की इंप्रूव हो रही है। सिर्फ पेशेंट की हेल्थ के आउटकम इंक्रीज नहीं हो रही, आपकी पेशेंट की प्रैक्टिस की जो आपकी मेडिकल प्रैक्टिस है, वो भी बेहतर हो रही है। राइट। आवाज आ रही? कोई यूं नहीं करते, अच्छा पंखा चल रहा है उसका, इसका मतलब चल रहा है। हाँ ठीक। ये सर। गुड। जो शुगर का पंखा चल रहा है तो इसका मतलब वीडियो इज ऑन। सही। एनीवेज, एक और बात। अब अगर बात करें, यहाँ पे ये नहीं है, अब शुरू हो रहा है हमारे यहाँ। अब इस वक्त 4 लोगों का कैमरा खुला हुआ है, कितने लोगों ने आज तक कंसेंट फॉर्म साइन कराया? जवाब मिल गया मुझे। एक दो लोगों ने वीडियो ही बंद कर दी। 1 2 3 4 5, आई एम हैप्पी, वेरी नाइस ये, वेरी वेरी नाइस। सो नाउ यू अंडरस्टैंड मैं क्यों कह रहा हूँ। आप लोगों ने सिर्फ यहाँ प्रैक्टिस नहीं करना, आप लोगों ने दुनिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने इवॉल्व होना है, तो इवेंचुअली यही होता है कि कोई भी आप काम करते हैं तो वो ऐसे करते हैं कि यू डोंट गेट सूट। हमें फॉर एग्जाम्पल, पढ़ाई बच्चा कर रहा है, अब अगर उसको क्लास में टॉप होने की नहीं भी है टेंशन, उसको घर में पिटने की टेंशन है, तो वो पढ़ेगा क्या, रब्बा जो है ना वो नहीं छोड़ेंगे। उसको तोहफा ना मिलने की टेंशन, यार ये डेफिनेटली जूते मिल सकते हैं तोहफे में, खाने वाले, नए वाले जूते मिलना मुश्किल है अगर मैं फेल हो गया। तो एक डर है। हमारे भी, कोई भी रिलीजन उठा लें, हमें पता है कि यार इसके कॉन्सिक्वेंस है कोई, ये अच्छा काम करूंगा तो कॉन्सिक्वेंस है, और अगर बुरा काम करूँ कॉन्सिक्वेंस है। तो एक वो है, डर है पीछे। तो बंदा अगर कोई काम मूड में नहीं होके भी नहीं कर रहा, वो डर के मारे कर लेगा ही, नहीं यार एक जगह रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ तो उसका वॉलेट चोरी कर लूंगा मैं, लेकिन बाद में फिर मेरा वॉलेट चोरी होगा, टैंक, जबरदस्त, तो नहीं करता। तो यहाँ पे ये एस्पेक्ट हमारे यहाँ मिसिंग है। रिड्यूस लिटिगेशन को आप हटा दें और यहाँ लिख दें पाकिस्तान / जस्टिस सिस्टम। अगर आपने गलती से किसी कम स्टेटस या कम पैसे वाले बंदे को आपने धस कर दिया, कुछ नहीं, आप निकले, आप कहेंगे गाड़ी तुमने क्यों यहाँ खड़ी की थी, आप उस पर चढ़ाई कर देंगे। अगर आपने किसी प्राडो वाले को ठुक कर दी, आपको पता है बेशक आपने ठुक की हो, उसके नजर में आपने उसकी गाड़ी को मारा, हालांकि उसने मारा, और वो फिर आपके पास आ जाएगा।
तो मैं ये बता रहा हूँ, आप पॉलिटिक्स में देख लें, किसी भी चीज में देख लें, अगर आपका पैसा है, यू ओन द जस्टिस सिस्टम। गलत काम करेंगे, मैं गाड़ी मेरी को रोकेगा, अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे जानते हैं जी सर, आप वो उसमें डेंटकॉन में प्रेजेंटेशन दे रहे थे, 200-300 लोग, ओहो सही सही सही, आप जा सकते हैं, या मैं इनका बेटा हूँ, उसका बेटा हूँ, तो आप निकल सकते हैं विद कॉल्स या विद मनी। इसमें क्या है, इवन इन डेंटिस्ट्री या मेडिकल प्रोफेशन, आपने कोई काम गलत किया या कोई ऐसा काम किया जो पेशेंट को नहीं चाहिए था, जो पहली स्लाइड में आपको बता रहा था, वो आपने कर दिया। अब वो क्योंकि नहीं चाहिए था उसको, उसका काम ही वो नहीं था, जो वो जिस प्रॉब्लम से आया है वो प्रॉब्लम वही है। असल मसला गम्स के ब्लैक होने का था, दांत को स्माइल में को वाइट करने से वो गम्स और काले लगेंगे, अभी तो दांत पीले हैं, तो वो प्रॉब्लम वही है। जब वो प्रॉब्लम वही है, अब वो लेके आएगा किसी को। हमारे यहाँ शू की नहीं है कॉन्सेप्ट, हमारा शूट का है, ठीक है। तो आपका सू नहीं होगा, लेकिन कुछ और हो जाएगा, लिटिगेशन। जब पेशेंट को पता है कि जो मेरे लिए हो रहा है वो काम ठीक हो रहा है, और वो मेरे लिए कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान बन रहा है, एक एक ट्रीटमेंट प्लान जो बन रहा है रोज, हर अपॉइंटमेंट में, वो उस पेशेंट के लिए बन रहा है। एक पेशेंट, दोनों की ट्रीटमेंट प्लान एक ही है, लेकिन एक का मैं ब्रिज लगा रहा हूँ और एक का मैं इम्प्लांट दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इनके नीचे बोन नहीं है सॉरी, और इसके लिए मुझे बोन ग्राफ्ट करना है, और मुझे पता है कि बोन ग्राफ्ट 3 महीने बाद हील होगा, और मुझे पता है कि उसमें भी एक एक्स फैक्टर है कि कभी कभार थोड़ा सा बोन लॉस हो जाता है, या कभी कभार वो फेल हो जाता है अगर पेशेंट साफ नहीं रखेगा। मुझे पता है कि इम्प्लांट जिसका लगाना है उसका बहुत पैसा है, और जो दूसरा वाला है उसके उसके पास इतना नहीं है। मैं इम्प्लांट्स का पैसा फिर भी ब्रिज लगाऊंगा, क्योंकि अगर सफाई ना करने की वजह से अल्लाह में के दांत निकल आया, तो ऐसी कौन सी चीजें जो मैं लगा दूंगा जो वो नहीं निकलेगी? समझिए आपको। तो लिटिगेशन से बचेंगे आप लिटिगेशन इसको कहते हैं सू होना, ठीक है। वो सू होने से आप तब बचेंगे जब पेशेंट को पता है कि उसके लिए जो काम हो रहा है वो उसके लिए कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान है, और उसको समझ आ गई कि क्यों हो रहा है वो काम, और उसके बाद हमने साइन करवाया हुआ है, ठीक है। अब वो काफी दफा ये होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई है, उसने गिलास तोड़ दिया, आपका फोन तोड़ दिया, क्या कहेंगे? डांटेंगे? क्या करेंगे उसको? उसको गोली थोड़ी मारते हैं, उसको क्या मारेंगे भी नहीं, खैर है, क्या टूट गया तो टूट गया, अपने आप को मारे, बस गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाए, रोने चले जाए, बस आपका उससे कनेक्शन है। कोई और तोड़ दे, आप रुक जाएंगे, ऐसी की तैसी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, गाड़ी की चाबी निकाल के बैठ के जाने नहीं दूंगा, जब तक मुझे लाइटों के पैसे नहीं मिलेंगे तुम भाग जाओगे यहाँ से। तो यही बात आगे चले, जब पेशेंट को उस वक्त से अब तक पता है कि सारे काम मेरे बाय हुए, तो वो आपको, अगर आपकी मिस्टेक होती भी है, जो कि होगी डेंटिस्ट की मिस्टेक, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे डेंटिस्ट की मिस्टेक ना हो। कल परसों की बात है, लेटर इंसाइजर फंस गया, यार लेटर इंसाइजर फंस गया, बंदा बंदा बुक फाड़ के डिग्री को जला दे, सारे चैनल्स को आग लगा दे, बंद कर दे, लेटरल फंस गया, लेकिन उसकी रूट यूं नीचे थी, तो वो कोई 3 बंदों ने ट्राई किया, उसके बाद जाके कोई आधे घंटे बाद वो लेटर निकला, क्योंकि उसकी रूट यूं थी। अब अगर कोई नॉर्मल पेशेंट होगा, जो अफोर्डिंग पेशेंट होगा, जो आप चाह रहे हैं, मैंने आपको बताया ना, इट्स अ साइकिल, ठीक है, तो आप डर के मारे कर लें काम, तो भी आप अच्छा ही काम कर लेंगे इवेंचुअली। तो पेशेंट को पता था कि यार ये दांत जो है, मेरे बहुत सारे और भी दांत निकले, कोई मसला नहीं। अगर पेशेंट आपको नहीं जानता और पहली दफा आ रहा है, वो देखेगा इनको काम नहीं आता, 3 लोगों ने आकर निकाला, जोर लगाया, और उसके बाद भी दांत नहीं निकला। अब अगर किसी और कंट्री में होंगे ना आप, तो वो आपको एक लेटर मिल जाएगा, अस्सलाम वालेकुम, और आप कहेंगे गुड बाय वहां से भागेंगे वहां से। मैंने अभी देखा है, परसों तरसों की बात है, वहीं शिकागो में एक दोस्त होते हैं, उनकी प्रैक्टिस पे किसी और ने, किसी और डेंटिस्ट को किया था, तो उन्होंने कर दिया कि इनको थर्ड मोल एक्सट्रैक्शन आती नहीं थी, ही वाज नॉट क्वालिफाइड टू डू इट। मैंने सबसे पहले काम पूछा कि पेशेंट पहले दफा आया? हाँ। इसीलिए, वरना दे वुड हैव बीन फॉरगिवन, ठीक है। ओके, फिर भी गलत काम करेंगे तो आपके साथ हो सकता है। अच्छा, हर वक्त इस पे बात होती है कि प्रोफेशनल आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है फॉर दोज हु आर एक्चुअली एम्पैथेटिक टू द पेशेंट। क्या जो मैं चाह रहा था वो हो गया, और पेशेंट का काम भी अच्छा हो गया, पेशेंट भी खुश है। अब मुझे और मेरे लेवल का काम हो गया, हालांकि मैंने 4 दफा शेड के लिए भेजा, लेकिन मेरे लेवल का काम हुआ है। मेरे लेवल का मतलब, मैं चाह रहा हूँ कि पेशेंट को भी बताने में मुश्किल हो कि यार कहाँ उसका हमने ओपेकर लगाया है, और कहाँ नीचे ग्रे स्टेन ऐड किया है, ताकि ओवरऑल जो है वो ब्लू स्टेन जाए, जो कि ट्रांसलूसेंसी का है। मतलब उसके लिए 5 दफा भेजा, लेकिन हो गया।
अब प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन है कि ये चीज, लेकिन प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन होगी किसको? प्रोफेशनल्स को ना। तो स्लाइड नंबर 1, अगर आप प्रोफेशनल है ही नहीं तो आपको प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन सिर्फ मिलेगी पैसे से, जो इनके ग्लव्स हैं ग्रीन है वो। तो आपको प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है। मैं बार बार घूम फिर के बता रहा हूँ, सही बंदा फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स इन द प्रोफेशन विल अर्न मनी। दैट इज क्रक्स ऑफ द सिचुएशन। सही बंदा मतलब जो पेशेंट का ख्याल कर रहा है फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स, चाहे वो ख्याल करता हो ना करता हो, और नंबर ऑफ इयर्स होंगे तो आप पैसे कमा लेंगे। लेकिन अगर आप पेशेंट सेंटर्ड करेंगे तो वो आपकी प्रैक्टिस यहाँ से यहाँ होगी, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ गूगल रिव्यूज, इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंड देन वो मल्टीप्लाई होगा। अदरवाइज जो पेशेंट आपके पास आ रहा है वो सिर्फ 2 दफा की डील के लिए आ रहा है, स्केलिंग, पॉलिशिंग, एसी and nice unit and 2 napkins and fluoride application and maybe also dual gloves for 6,000 की जगह 300 रुपए में वो आएगा, करेगा और निकल जाएगा। वो पेशेंट आपका कभी कोई कनेक्शन नहीं बना आपसे, राइट? मैं इसमें एक चीज मिसिंग है। आई टोल्ड यू, फॉर फॉर पीपल हु आर साइकोटिक लेवल तक इनटू द प्रोफेशन लाइक मी, ठीक है, आई टेल यू, उससे फायदा भी है उससे नुकसान भी है। व्हाट हैपेंस इफ यू आर लाइक perfectionist? It's already a very stressful job. अब आपने परफेक्शनों का जो है ना वायरस घुसा के अंदर, आपने नहीं और अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है कि नहीं मैं चाहता हूँ, हाँ जब पेशेंट नहीं चाहता तो आप क्यों चाह रहे हैं? तो फिर आपको बर्नआउट के चांसेस है ना बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन प्रोफेशनल, मेरे लिए प्रेजेंटेशन में जो ऊपर लिखा हुआ है स्लैश पर्सनल सेटिस्फैक्शन, वो मिसिंग है, ठीक है। एंड फॉर पीपल हु आर देयर इन द प्रोफेशन टू टेक केयर ऑफ अदर पीपल, मेरे लिए प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन तो ठीक है, बट मेरे लिए प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन इज पर्सनल सेटिस्फैक्शन, इफ दैट मेक सेंस। मेरे लिए दोनों एक ही है, क्योंकि पेशेंट का मैं ख्याल करना चाह रहा हूँ। आपको सब बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अदरवाइज प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन ने काम किया, पैसे आए, सब सेट है, आई एम गुड एट माई वर्क, यस, बट एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट का, पेशेंट खुश है, इसके आंखें देख रहे हो सब सेट है। वो भी एक मीम है कि आपने पेशेंट को मिरर पकड़ाया और आप देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, कि देखो उसकी आंखें ठीक है नहीं है, खुश है खुश है, तो देन आई कैन स्लीप एट नाइट इवेंचुअली। अदरवाइज ये होगा कि आपकी ओपीडी टाइप प्रैक्टिस होगी, हर पेशेंट 1 दफा आएगा, 2 दफा आएगा, काम करवाएगा, क्योंकि कोई और किसी ने और काम किया, आपका कोई इनपुट नहीं है, और बस चिपका दिया, वो पेशेंट दोबारा कभी नहीं आएगा। दीज प्रैक्टिसेस डोंट ग्रो, ठीक है, ये वो डीज वाली प्रैक्टिस ही रहेगी। आगे चलें, पेशेंट लॉयल्टी। मैंने आपको बताया था पहली स्लाइड में कि अगर पेशेंट का ट्रस्ट है एंड इफ इट्स बिन नंबर ऑफ इयर्स एंड पेशेंट केयर आपने किया है, तो फिर पेशेंट लॉयल रहेगा, ठीक है। पेशेंट लॉयल रहेगा का मतलब है वो अपने घर वालों को भेजेगा, वो अपने कजन्स को भेजेगा, वो अपने दोस्तों को भेजेगा। वाई? बिकॉज अब आपकी ऑलमोस्ट एक फ्रेंडशिप इस लेवल तक आप पहुंच गए। आई वुड नॉट रिकमेंड फॉरन, जो पेशेंट आपको अच्छा लगने वो आए मैं दोस्ती कर लेता हूँ, ओ भाई दोस्ती अभी फॉरन दोस्ती में जरूरत नहीं है। एम आपको दोस्ती नहीं है, एम इज गेटिंग क्लोज टू दैट। दोस्ती हो सकती है, अभी कोई मसला नहीं है, बट देन वो आप उससे चार्ज भी तो कर रहे हैं, फिर जब आपको दोस्त बन जाएगा तो आप चार्ज भी कम करेंगे क्योंकि दोस्त है। तो इसलिए हर बंदे से अगर आप शादी कर लेंगे तो फिर किसी को चार्ज नहीं कर सकते आप। तो आपने दोस्ती लेवल तक करना है। फॉर एग्जाम्पल माय, बल्कि बाहर तो लॉज भी हैं सिविलाइज कंट्रीज में, थोड़े डेवलप्ड कंट्रीज में, सिविलाइज के मतलब हम लोग को जंगल में रहते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में लॉज है ना इन प्लेस, तो उसमें होगा आप यू कैन नॉट कॉन्टैक्ट द पेशेंट्स आफ्टर वर्क आवर्स, यू कैन नॉट हैव यू फॉलोइंग देयर पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल्स, एंड आप उनको फॉलो कर रहे हैं, फिर आपको मैसेज, यू कैन नॉट रिसीव गिफ्ट्स, ये सब क्लियर कट लिखा हुआ है। कोई भी ओपीडी में मेरे पास आता है ना, मैं उनको पहले बता देता हूँ, वो समझते हैं टफसान यूट्यूब इंस्टाग्राम हंस रहे हैं, ये वो सब सेट है, बट पटरी से उतरने में देर नहीं लगती। तो पहली चीज मैं बोलता हूँ, आई एम एक्सट्रीमली फ्रेंडली बट आई एम नॉट योर फ्रेंड, आई एम योर टीचर। मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ हैं, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट। मैं यहाँ हूँ, यहाँ ये नहीं कि जाओ पोछा मारो देखो मजदूर मजदूर नहीं है मेरे पास, बट एक रिस्पेक्ट लेवल ऊपर नीचे रखें। पेशेंट जो है, विच इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ डेंटिस्ट, पेशेंट आपको रिस्पेक्ट करे, जो आपकी रिस्पेक्ट ना करे, थैंक यू वेरी मच, आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम जो है ना इनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन जो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आप उसकी रिस्पेक्ट में, आपको छोटे से एग्जांपल देता हूँ।
पेशेंट केयर में भी आ जाएगा वो। मैं अभी थोड़े दिन पहले किसी को बता रहा था, मैं किसी क्लिनिक गया था और ऑब्जर्व कर रहा था, तो जो एसोसिएट डेंटिस्ट हैं वो जो पेशेंट था वो उनकी उम्र का था, राइट। तो लेट्स से एसोसिएट डेंटिस्ट जो था वो था 25 साल का, जो पेशेंट था वो भी 25 साल का, राइट। मतलब आपकी उम्र का है। या चलो पेशेंट वॉज 23, डॉक्टर 25 का है, विच इज क्लोज टू वट यू गोइंग टू गेट दीज डेज। ठीक है। सो जब पेशेंट आता है और आप उसको बोलते हैं अच्छा अब तुम्हारा एक्सरे लेंगे, ठीक है, वो छोटा है, बच्चा है, राइट, आप तुम्हारा एक्सरे लेंगे और उसके बाद फिर हम आपको तुम्हें बताएंगे कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। अच्छा मुंह खोलो, रिएक्शन हो गया, सब सेट है, राइट। व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? कोई बता सकता है? ज्यादा और एनीवन हु कैन बी अनम्यूटेड? बातें करने का तरीका। प्रोफेशनलिज्म नहीं द है। ग्लेयरिंग ऑब्वियस, क्या कहते हैं, गुड बाय द वे। Whenever I say good, by the way, it's usually not the right answer, but anyways, it's close to what you wanted to say and what I wanted to hear. और वो क्या है? तुम। अब आप तुम तला पे अभी से आ गए क्योंकि वो छोटा है। अब अगर सेक्शन गलती से भी उसने बकल सर्कस की जगह गलती से स्वरो तो वहां पे जोर से दबा दिया, यार क्या कर रहे हो तुम? अब आपको बेइज्जती लग रही है कि जैसे मैं मजदूर हूँ, ठीक है। यार दांत तुमसे नहीं निकल रहा, तुम अब आपको बुरा लग रहा है, नहीं लग रहा? अब उस वक्त बुरा नहीं लग रहा था, अब बुरा लग रहा है क्योंकि नाउ ही इज टॉकिंग टू यू एट योर लेवल, अब देयर इज नो रिस्पेक्ट। यार तुमसे तो दांत निकल नहीं रहा। रियलिस्ट वही एक जूम आउट हुआ बेइज्जती का, ये करके अपने आगे हिट हुआ जाके यहाँ पे। तुमसे दांत निकल नहीं रहा, तुमसे ये नहीं हो रहा, तुम तड़ा पे आप आ गए। आई एम अ वेरी ओल्ड स्कूल गाय। आई स्टिल बिलीव इन सम ऑफ द ओल्ड वैल्यूज जो बूढ़ों वाली हैं। आप पेशेंट को फिर भी आप बोलेंगे, ठीक है। तो फिर पेशेंट भी हिचकिचाता है कि उसके दिमाग में बार बार आ रहा है आप, वो आप बोल रहे हैं, वो भी आप बोल रहे हैं कि वो बड़ा है, एक रिस्पेक्ट लेवल है, एक प्रोफेशनल आप पे काम कर रहा है। यार आप किसी और तरह देख लें, आप ये कर लें तो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसके लेवल पे बिल्कुल नहीं आएंगे। वाई? अब आपने ये ऐड किया ना, अब होगा ये कि ऑल ऑफ दिस विल ट्रांसलेट इनटू पेशेंट रिस्पेक्टिंग यू एंड यू रिस्पेक्टिंग द पेशेंट, दोनों एक साथ जाते हैं, ठीक है। लॉयल्टी पे मैं आ रहा था। लॉयल्टी का ये है कि अब वो क्या बता रहा था, हाँ। अब आपने उससे इतनी छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे इंफॉर्मेशन हुई हैं आपकी, इंटरेक्शन हुई हैं और सब पे आपने उसको रिस्पेक्ट किया है। अब ये है कि अब कुछ सेलिब्रिटी आती है, उनका अच्छा काम होता है, ठीक है। आप सबसे पहले किसी को मैसेज करें कि यार किसी सेलिब्रिटी को उठा लें और उसे कहें यार मुझे शाउट आउट दे दो, ऐसी ऐसी। आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, इट माइट हिट सम पीपल हु आर ट्राइंग टू डू गुड इन द वर्ल्ड, ठीक है। आप उनको मैसेज करें मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ एंड हम यतीम बच्चों की मदद करते हैं, हमारा ये स्कूल है, हमें शाउट आउट दे दें। सीन नहीं होगा वो, सीन नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे यतीम बच्चे हैं हर जगह, बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं, लेकिन वो सेलिब्रिटी सिर्फ यही थोड़ी करता रह जाएगा। अच्छी बात है कि बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो करते हैं, फ्री में बहुत सारी चीजें करते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, उसने 1 मिलियन बना लिए अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर, रोज कंटेंट डाल डाल के ये कर रहा है वो कर रहा है, बन गया ना, मेहनत की है किसी भी तरह पहुंच गए। अब अगर वो सिर्फ ये मुफ्त वाले डालता रहेगा जिसमें से पहली 3 जो है वो स्टोरीज जो है वो क्या कहते हैं एंगेजमेंट होती है, उसके बाद फिर लोग यूं टक 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 एक एक शक्ल नहीं देख सकते, अटेंशन स्पैन कम होता है, राइट। तो वो फ्री में नहीं डालने वाला अनलेस कोई कोलैबोरेशन आप कर लें सर, आहिस्ता आहिस्ता। मैं आपको बता रहा हूँ देयर आर पीपल स्टिल डू अ लॉट ऑफ गुड फॉर फ्री, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि वो फिर मॉनेटरी, ये बता रहा हूँ, दे वांट समथिंग आउट ऑफ इट। अब जब आपका डेंटिस्ट है कोई और आपने उसका काम किया, पैसे लिए, बहुत अच्छा काम हुआ और चले गए, आपकी कोई एडिशनल उससे बॉन्डिंग नहीं हुई है, ऑन रेकॉर्ड नहीं बनी हुई, ठीक है, तो उसने कुछ नहीं करेगा आपके लिए। लेकिन अगर आपने उसका काफी महीने सालों एंड फ्रेंड सर्कल और ये वो काम किया हुआ है, तो अब वो कोई भी बंदा कोई भी बात कर रहा होता है ना, तो वो आपका नाम खुद लेगा, उससे पूछने की जरूरत नहीं यार मेरे डेंटिस्ट के पास चले जाओ, जेन्युइन है, क्योंकि एक तरह से आपसे एक बॉन्डिंग है। तो वो आपको दोस्त के लेवल पे समझ रहा है कि यार नहीं ये मेरा डेंटिस्ट बहुत जेन्युइन है, तुम्हारा डेंटिस्ट तो फारग है, इस वाले के पास चलो, वो खुद आपकी मार्केटिंग कर रहा है। आपको डीलें बांटने की जरूरत नहीं पड़ रही उसको रखने के लिए, क्योंकि आपसे उससे दोस्ती टाइप लेवल हो गया है। तो अब बाकी जब वो किसी के साथ बैठा होता है तो वो रेफर कर देता है आपको पेशेंट, विदाउट यू इवन आस्किंग फॉर इट। सो
जिन लोगों को ये बात समझ नहीं आई कि वो जेल जा सकते हैं, जिन लोगों को ये बात समझ नहीं आई कि पैसे नहीं आएंगे, उन लोगों को कम से कम ये बात समझ आ जाएगी कि पेशेंट सेंटर्ड केयर करने से आपके पास इवेंचुअली पेशेंट आएंगे और आपके पास पैसे आएंगे। उनको ये समझ आ जाए। मेक सेंस? थैंक यू। Thank एंड यू मोस्ट वेलकम। सॉरी मेरी प्रेजेंटेशन थोड़ी वो होती है इंटरेक्टिव एंड गिविंग यू रियल टॉक रादर देन स्लाइड्स ऑन द स्क्रीन। सो या बस ये छोटी सी एक प्रेजेंटेशन थी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई एम हियर, प्लीज यू कैन आस्क मी। Exactly, sir. That's what exactly what we needed because हमें इतने ज़्यादा lectures मिलते हैं लेकिन कोई हमें अपने level पे real talk नहीं देता and that's just what you did. तो अभी हमारे पास 3-4 questions हैं जो कि काफ़ी जी जी हैं intense हैं regarding the clinical जो clinics run करनी है. एक first जी। question है, you've extensively researched and run your own clinic. What advice do you have for recently graduated dentists from Pakistan like us? Is it better to establish our own clinic here and pursue FCPS locally or go abroad? ओके, दैट्स लाइक सेइंग वो ऑब्जेक्टिव सवाल आया, सब्जेक्टिव वाला बड़ा होता था ना। जी। राइट, एवरीथिंग यू नो अबाउट डेंटिस्ट्री। छोटा सा सवाल है बट इट्स लाइक, सर जो आपको पता है ना आप बता दो। जो भी आपको पता है जस्ट आप शुरू हो जाए। मैं इसकी क्लासिफिकेशन बना दूंगा, पिछले इंटरव्यू में भी ये बता रहा था, टू मेक इट अ लिटिल सिंपल। थोड़ा सा हेट करेगा एचओडी टाइप लेवल लोगों को, बिकॉज दैट इज व्हाट इट इज। मेरा बस मानना ये है कि मैं पेशेंट केयर है ना, ये क्या था प्रेजेंटेशन का नाम भूल गया, पेशेंट सेंटर्ड केयर। मैं बताता हूँ इंडिविजुअल सेंटर्ड करियर काउंसलिंग। हर बंदे का अलग है, एक नहीं चिपका सकते। मैं आपको 4 पॉइंट बुलेट पॉइंट्स देता हूँ, यू कैन फीड इट इनटू योर लाइफ। बुरा नहीं मानेगा, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ सीधी बात बता रहा हूँ। सब ने एक्सेप्ट फॉर लेट्स से 10% पीपल, सब ने अगले 10 साल के अंदर कोई प्लान है शादी करने का? सब Hmm. बोला है। मैं लड़का नहीं बोला, लड़की नहीं बोला, सब ने। यूर 20, you would want to, except for 10% people, 15%, you as humans you will have to, if you want to move on। आपको कुछ चीजें अभी फिल्टर नहीं होती, अभी सब करियर 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 करियर, पैसे करियर, पेशेंट सेंटर्ड केयर, पैसे करियर, कैसे 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 करियर, एंड देन व्हेन यू डन विद इट एंड व्हेन यू हैव मनी एंड देन यू रियलाइज, अच्छा वो तो आ गया, अब क्या करूं, पैसे किस साथ खर्च करने हैं? क्या करूंगा? अच्छा ट्रैवलिंग भी हो गई, इंस्टाग्राम 1 मिलियन भी हो गए, फिर भी जो है किसी सेलिब्रिटी ने सुसाइड कर ली। अब आप देखें कि यार इसकी जिंदगी में सब कुछ था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट मनी इज नॉट द इवेंचुअल गोल। स्टेबिलिटी, पीस ऑफ माइंड, चाहे वो फाइनेंशियल हो, एंड अ फैमिली एंड ऑल्सो अदर थिंग्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गोल। तो हर बंदे का वो गोल अलग है। अब मैं उसको थोड़ा पीछे लाता हूँ और सवाल पे लाता हूँ। सवाल कहता है कि राइट, एवरीथिंग यू नो राइट, जिसकी शादी नहीं हुई अभी वो, और दे डोंट गेट टू डिसाइड वेयर दे विल गेट मैरिड, वो बाहर के एग्जाम्स ना दिए अभी। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। हर साल मेरे बहुत सारे बच्चे वो यूके के एग्जाम दे रहे होते हैं, जी सर ये ले सर हमारी शादी का कार्ड प्लीज आएगा जरूर, मैं यूएसए जा रही हूँ। अच्छा, तो वो यूके का एग्जाम का क्या हुआ? सर वो तो ओके, गुड। और बाकी जो लोग हैं जिनके पास पैसे हैं वो उन्होंने, उनका सबसे पहले प्लान है कि मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा। तो एफसीपीएस में क्यों बैठे हुए हो? इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है बाहर जाने में। सर मेरा प्लान है बहुत बड़ा क्लिनिक खोलूं मैं। मुझे डेंटिस्ट्री 3 पसंद, बट मुझे काम आता है, बट लेकिन मैं चाहता हूँ बहुत सारी मल्टीपल प्रैक्टिस हो। तो उसके लिए पोस्ट ग्रेड की क्या जरूरत है? नहीं सर वो पेशेंट तो मांगता है ना सर। नहीं, पेशेंट नहीं मांगता, पेशेंट नहीं मांगता, पेशेंट कहता है काम आता है आपको। ये आते थोड़ी कहते बताएं आपने JW गौते से किया है, अच्छा कितने क्रेडिट आवर्स थे, गए कितनी दफा देखा सर। फिर तो क्या आपको आदत थोड़ी है, वो आपको थोड़ी जज करना, वो देखना है कि काम आता है नहीं आता। अगर काम आता है यू कैन ओपन योर क्लिनिक। काम आपको, और बाय द वे फॉरेन जवाब नहीं है इसका ये कि सर मुझे आता काम, मैं वो जो छोटा नहीं है उसमें छुप छुप के, मैं बहुत अच्छा काम मुझे आता है, मैं उसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं आता काम, पहली बात तो ये रियलाइज कर लें अपने दिमाग में, काम नहीं आता भी, डेंटिस्ट्री नहीं आती, योर हाउस ऑफिसर नाउ, बट दिस इज द गोल टाइम टू लर्न। दैट्स नंबर 1।
तो अभी क्लिनिक, आई नेवर एडवाइस ओपनिंग अ क्लिनिक राइट आफ्टर योर फाइनल ईयर एज यू बिकम अ डेंटिस्ट। 1-2 साल बाद खोलें। उससे पहले आप किसी और के क्लिनिक पे जाके इंटर्नशिप्स कर लें, या उन अटैचमेंट कर लें, या कहीं फ्री में काम कर लें, या पैसे दे काम कर लें, लेकिन कर लें ताकि उनकी वर्किंग समझ है क्लिनिक चलाने की, ओपीडी से निकल के। ओपीडी मैंने बताया ना, कोई पेशेंट केयर तो है नहीं, लॉग बुक केयर है, तो पहले पेशेंट केयर की तरफ आ जाए, ताकि दिमाग आपका उस बॉक्स में आ जाए कि अच्छा ये करना होता है। फिर उस हिसाब से आप वर्कशॉप और सिंपोजियम और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करेंगे। राइट। पहली बात हो गई कि आप चाहते क्या हैं। अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो फिर उसमें दो कैटेगरी है, बाय द वे, ये को बना दे कोई इसका चार्ट वर्क फ्लो। यहाँ पे रहना चाहते हैं और आप पढ़ाना चाहते हैं, तो एफसीपीएस या एमडीएस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। बस, चाहे वो फारिग निकले, चाहे आपकी एफसीपीएस में आपका सुपरवाइजर आया ही नहीं था और आपकी एक्सटेंडेड हाउस जॉब हो गई, खुद ही अपने आप को मेडल बना दिया, मैं जिसने एमएससी की है, मैं जिसने एमएससी करवाई है, दोनों एक दूसरे को एक देख रहे हैं, कोई बीच में था ही नहीं। लेकिन पीएमडीसी कहेगी कि अगर आपने प्रोफेसर बनना है सुबह, तो आपको एफसीपीएस या एमडीएस चाहिए, पीरियड, खत्म होगी बात। लेकिन अगर आप चाहते हैं शाम में प्रैक्टिस करने जहां से पैसे आएंगे आपको इवेंचुअली, उसके लिए आपको काम आना चाहिए, आपको एफसीपीएस की जरूरत भी नहीं है, एमडीसी की जरूरत भी नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर मैंने पढ़ाना नहीं है, लेकिन मैंने इसमें पोस्ट ग्रेजुएट करना है क्योंकि मुझे पसंद है, आई लाइक डिजिटल डेंटिस्ट्री, आई लाइक इम्प्लांट्स। मनी से ताल्लुक नहीं है, इफ यू लाइक इट, उसका कोई मोल नहीं है। आप पढ़ें, किसी किताब को पढ़ने से, एमएससी करने से, पढ़ने उससे आपको कोई नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है। कोई कभी खराब नहीं हो गया कोई एक्स्ट्रा पढ़ने से, तो अच्छी बात है, कर लें वो। लेकिन ये याद रख लें कि क्लिनिक चलाने का प्री रिक्विजिट एमएससी नहीं है या एफसीपीएस नहीं है। वो आप या तो पैशन के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, या वो उस काम को सीखने के लिए कर रहे हैं। नथिंग है। सुबह रहना है तो आपको काम करना पड़ेगा। शादी नहीं हुई आपकी और अभी डिसाइड होने वाला है, उसके बीच में आपने टांग नहीं अड़ानी किसी और कंट्री की, पहले वो करने दो। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, हर 9 क्लास में, मेरे क्लास में 90 लड़कियां थी और 18 लड़के थे। 7 या 8 लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, नो वन एल्स। और ग्रेजुएशन के वक्त ये 1 मार्क, 2 मार्क, 3 एक्सट्रैक्शन, वो एक्सट्रैक्शन, वो एक्सट्रैक्शन, लड़के और कुछ लड़कियां यूं बैठे हुए, हाँ लड़ लो लड़ लो। 10 साल बाद कोई होगा ही नहीं, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, फिर सिर्फ हम लोग ही होंगे। और जिन लोगों ने यहाँ रहना है, और अच्छा एक और बात भी आती है कि कुछ लोग होते हैं कि वह पैसा इज नॉट प्रॉब्लम। जिन लोगों के दोस्ती कर ले आप इन लोगों से, बिकॉज अगर $300 के बाद भी वो ये कह रहे हैं ना कि पैसा इज नॉट प्रॉब्लम, मतलब बहुत पैसा है, ठीक है, इनसे दोस्ती करके रखें। एनीवेज, मजाक कर रहा हूँ। अगर आपका पैसा है और आप एमएससी या कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको नहीं पता कि आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है, इतने ही पैसे हैं अब्बा के पास, 3 करोड़ रहेंगे आपकी एजुकेशन पे खर्च करना है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ ऐसी, रफ स्केच, क्योंकि अब एमएससी इस $50,000 पर ईयर, दैट मीन्स 1.5 करोड़ रुपए, ठीक है। अब अगर 3 करोड़ टोटल सबको पढ़ाने के लिए, तो आप भी बेवकूफ ना बने ना, जब मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेरे टीचर्स आपको बता रहे हैं, जब आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं कि आप जब 1.5 करोड़ की एमएससी करके आएंगे, 1.5 करोड़ की एमएससी ट्यूशन फीस, इसका मतलब आपने 1.5 साल से कुछ नहीं खाया हुआ, आप सड़क पे सोते थे और मैकडोनल्ड्स भी नहीं खाते थे, ठीक है, क्योंकि वो पैसे फिर वो 2 करोड़ बन जाएंगे। वो 2 करोड़ की डिग्री जब आप बाहर करके वापस आएंगे यहाँ पे, तो आपको डेमो लगा देंगे, 30,000 रुपये। वाह। तो आप स्टूपिड हैं फिर। यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट कि आपके पास फाइनेंसेस क्या हैं, ठीक है। मुझे समझ आ गई थी पहले ही, तो मैंने कहा यार ये मैं, आई विल नॉट बी दैट स्टूपिड हु विल वेस्ट माय डैड्स ऑल ऑफ माय डैड्स मनी टू डू समथिंग जो बाद में फिर आई कैन नॉट गेट बेनिफिट ऑफ, सिर्फ अपने फायदे के लिए कि मैं, इट्स माय पैशन, यस इट्स माय पैशन, बट देन पैशन ही रहेगा, रोटी तो होगी नहीं घर पे, खा लेने पैशन। तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं कर सकते। और अगर कुछ लोग आर ओपन, यूजली गाइज होते हैं एंड समटाइम्स इवन गर्ल्स, क्या नहीं यहाँ से एमएससी करेंगे और फिर हमने वहीं रहना है, दैट ऑल्सो आई आर नॉट रिकमेंड। वाई? बिकॉज अगर आपने यहाँ नहीं रहना, यहाँ पे रिक्वायरमेंट एमएससी, ये वो एफसीपीएस, ये बहुत सारी चीजें करके अब आप इतनी वैल्यूएबल हो गए कि अब आप 1.5 लाख रुपए इम्प्लांट के ले रहे हैं। 1.5 लाख रुपए इम्प्लांट के पता है कितने बनते हैं? $500। $500 में पीएफएम ग्राउंड भी नहीं आता अमेरिका में। ये सिर्फ यहाँ के चोंचले। टक्कर जो लिखी हुई है आपकी, वो टक्कर जो है बेचारा डीडीएस है, मतलब बीडीएस। उसको काम इतना अच्छा आता है कि वो बाकी 3 जो ऑथर हैं, जो एमडी भी हैं, पीएचडी भी, उनके साथ को ऑथर है वो, और हम सिर्फ टक्कर का नाम लेते हैं।
क्योंकि बाहर काम पे एम्फेसिस है, स्टेट डिसाइड करती है कि पैसे कितने मिल रहे हैं। तो अगर यहाँ नहीं रहना, पाथवे इज वेरी सिंपल फॉर यू। यहाँ नहीं रहना, अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, कहीं भी और चले जाएं, वहां के बोर्ड एग्जाम्स दें, बिकम अ नॉर्मल डेंटिस्ट और सुकून की जिंदगी गुजारें। उसके बाद भी इफ इट इज योर पैशन, तो देन कंप्लीट एंड फॉलो योर पैशन। बट पहले जो पैशन है वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद पैशन बाद में आता है। पैशन इज अ वेरी थ्रोन वर्ड फॉर पीपल हु हैव मनी, फॉर पीपल हु हैव मनी। तो वही आप सुनते हैं और आप कहते हैं हाँ यार, माई पैशन शुड बी समथिंग लाइक दिस। पैसे ठीक है, घर चलाने के लिए पैसे हैं, पैसे चाहिए भी। यहाँ रहना है, नहीं रहना तो बाहर जाएं, और अभी पैसे नहीं है, अभी डेंटिस्ट्री के लिए क्वालिफाई एग्जाम दें और ख्वारी करें और वहाँ के डेंटिस्ट बन जाएं, और उसके बाद फिर आप आराम से आप जो है वो करें प्रैक्टिस। मेरे दोस्त अभी अभी निकले हैं, वो आफ्टर 15 years ही जस्ट मूव टू अनदर कंट्री। उनको समझ आ गई इस सब कुछ करने के बाद भी ही वॉज नॉट मेकिंग इट वर्क। ही इज इन FCPS, ही इज ऑल्सो इन MSc, he also had a clinic, everything, that उनको समझ आ गई कि मुझे इतने पैसे मिलने वाले हैं। अब प्रैक्टिस 1.5 2 साल यहाँ पे भी कर ली, मिल रहे हैं लेकिन नो। तो अब वो मूव करके वहां चले गए, अब वो वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं और मुझे कॉल कर रहे हैं, भाई ये सब आग लगा दो, छोड़ दो और वहां पे आ जाओ, अगर मैं तुम्हें असिस्टेंट भी रख लूंगा तो तुम्हारी यहाँ की सैलरी से बेहतर है। सो फॉर पीपल हु कांट मूव आउट, वहां पे बाई द वे कोई भी चीज अब में सक्सीड करने के लिए ना आसान नहीं है। इफ इट वॉज इजी एवरीबडी वुड डू इट, ठीक है। और आप किसी भी प्रोफेशन में 10 साल लगा लेंगे तो आप बहुत चीते हो जाएंगे उस प्रोफेशन के, लेकिन उस 10 साल लगाने तक सरवाइव करना है आपको, मेंटली भी फाइनेंशियली भी। इफ यू आर ओके विद इट, कम इन टू यहाँ लगे रहें और आप 10 साल में यू विल बिकम चीते। कुछ भी कर रहे होंगे ना यहाँ पे, आप 10 साल में आप पैसे कमा लेंगे, ठीक है, बाहर भी कमा लेंगे। लेकिन अगर मुझसे अभी सवाल है कि मैं अब क्या करूं, मैंने आपको 3 4 टिप्स दे दी हैं, इतने कंफ्यूज ना हो। अगर आपके पास बहुत पैसे नहीं है, यहाँ FCPS करें। और अगर सुबह पढ़ाना है आपने, बहुत पैसे नहीं है और मूड भी नहीं है FCPS का, तो कोई मसला नहीं है। आप 90% लोग हैं डेंटिस्ट्री के जिनको मंजन बेचा है कि FCPS कर लो, ये कर लो, वो कर लो। भाई कुछ नहीं कर लो तब भी क्लिनिक चला लो, जब मूड होगा तब और पैसे होंगे तब MSc कर लेना, कुछ और कर लेना, और वो 2 साल बाद करना है। कोई सीधी बात नहीं बता रहा कि भाई इस तरह क्लिनिक चलता है, ये 4 5 कोर्स कर लो और यहाँ से जाके फ्री में सीख लो या पैसे देके। हम हर बॉक्स में जाके ना खुद ही खड़े हो जाते हैं, सर ओहो सर यहाँ तो इंटर्नशिप पेड नहीं है। ओ भाई यार, जिसको मिल रही है ले ले, बस कुछ भी कर ले, अपना उल्लू सीधा कर ले, काम सीख ले और प्रैक्टिस शुरू कर दे, ताकि इसी लूप में ना रहे। और दूसरी बात, जो लोगों का बाहर जाने का प्लान है लेकिन अभी नहीं है, शाम में रहना है, प्रैक्टिस करें छोटे मोटे कोर्स करके, सुबह रहना है, कर लें FCPS ज्वाइन, कुछ भी कर लें। Let that not be the barrier for you to move anywhere else if you want to. I am just saying कि keep your boards in handy and सारे कस्टमर को आग ना लगा दें। पहला प्लान ऑफ एक्शन आपका यही होना चाहिए, 3 4 सवाल अपने आप से। बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं तो कितने हैं? क्या उतने पैसे करने के बाद वापस आना है, तो आपको पैसे कितने मिलेंगे? दूसरा, बहुत पैसे नहीं है तो बाहर की बात नहीं है, बहुत पैसे नहीं है और यहाँ पे भी रहने का मूड नहीं है, सो वेरी सिंपल आंसर, यहाँ से चले जाए। बस ऐसे मैं आपको बोल लूँ कि यहाँ पे पैसे भी नहीं है और यहाँ मूड भी नहीं है, FCPS कर लो, ताकि अब जो है जिंदगी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अब, जो जिंदगी में जो रह गया था। तो कंफ्यूज ना हो, ग्रेजुएट हो तो बस देख लें कि आपने पढ़ाना है या आपने प्रैक्टिस करनी है। पढ़ाने में पैसे नहीं है, प्रैक्टिस में पैसे हैं। Thank you. पढ़ाने का जो है वो आपके HOD का शुरू का होता है, उसके बाद आपको समझ आई थी कि मेरा HOD बेचारा, उसकी ही हैज नो लाइफ। वो सुबह पढ़ाते हैं, शाम में प्रैक्टिस करते हैं, ही हैज नो लाइफ, सो आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन। एंड नाउ सिंस माय ऑल माय कोलीग्स आर गेटिंग टू बिकम HODs, दे से द सेम थिंग कि यार सुबह जाना है पेपर चेक करने, वहाँ बैठ रहेंगे ऑफिस में, ये करेंगे वो करेंगे, शाम में आएंगे मरी हुई हालत में क्लिनिक पे। आई होप आई आंसर्ड some of the queries. Like I said, there is no single straight simple answer कि हाउस जॉब के बाद क्या करें। अलग अलग है, जिसके पास पैसे हैं वो अलग करेगा, जिसकी शादी की रिक्वायरमेंट है वो अलग करेगा, जिसने यहाँ रहना है वो अलग करेगा, जिसने बाहर जाना है वो अलग करेगा। लेकिन बाहर जाना है, पैसे कमाने, MSc का ताल्लुक पाकिस्तान में है ज्यादा, बाहर नहीं है। जी सॉरी।
थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी तरह इन डेप्थ एक्सप्लेन किया, और आई नो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल देमसेल्व्स कि उनकी क्या ऑप्शंस वो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि व्हाई डिड यू नॉट प्रैक्टिस अब्रॉड, सिंस आपने जर्मनी से भी डिग्री ली थी, व्हाई डिड यू कम बैक टू पाकिस्तान? Oh, okay. So you guys don't know the whole story. I'll simplify it and shorten it. I cleared my national board exams. I got pretty decent score, and that was 14 years ago. जब मैं ग्रेजुएट कर रहा था, तो आई थिंक 1 साल हो गया था, 2 साल हो गए थे। तो भेड़ बकरियां जो आप लोग हैं, दिस वॉज मी 15 years ago। ठीक है, उस वक्त जैसे ही निकले, ग्रेजुएट हुए, उस वक्त ना आप सोचते हैं कि राइट लेफ्ट, कि यार अम्मी अब्बू का इतना सोचते हैं। मैं आपको रियल टॉक बता रहा हूँ अगेन। नहीं सर मैं बहुत ख्याल करता, हाँ आई नो, लेकिन अगर मैं भी तो $1 million की नौकरी दूं तो आप चांद पे भी चले जाएंगे। चले जाएंगे नहीं चलेंगे, 90% लोग चले बहुत जाएंगे। तो ठीक है इसलिए सर। बता रहा हूँ, वो आपको फीलिंग आएगी नहीं जब तक आप बड़े नहीं होंगे। एनीवेज, तो मैं जब ग्रेजुएट हुआ, देखा सब जा रहे हैं अमेरिका, ओहो सब अच्छा। तो यही जाना होता है, बड़े होने का मतलब यही है कि हर बंदा पढ़ता है और फिर अपने क्या कहते हैं पाथवेज देखता है और फिर जाता है, राइट। एंड वेर एवर दैट इज, कुछ आप देखते हैं खानदान में भी लोग हैं जो यहाँ नहीं है, वो वहीं प्रैक्टिस करते हैं। सो देन यू रियलाइज दैट मे बी पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप इज टू अंडरस्टैंड दैट मे बी योर फ्यूचर इज नॉट हियर, मे बी फ्यूचर इज बाहर में। आप उस वक्त ये नहीं सोचते कि मुझे यहाँ रहना है, ये कि आप सोचते हैं जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है मैं वहां जा रहा हूँ। तो उसी तरह भेड़ बकरी की तरह सब लोग जाते हैं, तो मैं भी चला गया। मैंने नेशनल बोर्ड्स क्लियर कर लिए, अच्छा खासा महीने लगाए पढ़ाई करके। जब पूरी पढ़ाई कर ली, एग्जाम से 30 दिन 20 दिन पहले पता लगा, एक इससे मिला बच्चे से जिसने नेशनल बोर्ड रिसेंटली क्लियर किया था। तो उसने बताया कि तैयारी कर ली। मैंने कहा हाँ सब पढ़ लिया, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। जब सब पढ़ लिया, उसको बताया मैंने कि क्या पढ़ लिया, कहता है भाई ये सारी एमबीबीएस की किताबें। वापिस वापिस दोबारा पढ़ा, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता राइट लेफ्ट के क्या करना है। मैंने कहा था जो लोग बोलते नहीं ना और पहुंच जाए कहीं, उनका पीछा करता रहो। देखो क्या, क्यों स्टोरी नहीं लगा रहा है, ये क्या कर रहा है, कि इसको मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है। क्यों है, ये क्या कर रहा है बंदा, ही इज द गाय यू नीड टू फॉलो। जो बहुत पोस्ट कर रहा है ना, वो तो बता रहा है क्या कर रहा हूँ मैं। जो नहीं कर रहा और कुछ और कर रहा है, क्या कर रही, क्या है ये बंदा, तेज है बहुत। एनीवे, सो मैंने वो क्लियर किया। बट देन उस वक्त फेसबुक था। देन आई रेड अ कोट, साउंड्स वेरी ड्रामेटिक बट इट वाज, वो ये था कि व्हेन यू ग्रोइंग अप यू फॉरगेट टू रियलाइज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और वो ये कि दैट योर पेरेंट्स आल्सो ग्रोइंग अप। मैंने कहा यार, आपने वो देखा है, वो कारपेट में खड़े हो और कारपेट फुक करके निकाल दें, तो बंदा उड़ता है यूं गिरने से पहले। और मैं उड़ रहा था, उसको हाइबरनेट कहते हैं। ये आके घूम रहा है कि यार 1 साल पहले ये पोस्ट अगर दिखा देते तो बंदा इतनी ख्वारी ही ना करता ये करने के लिए, ये वो। तो देन दैट वाज अ रियलिटी चेक कि यार हेलो, और भी लोग हैं दुनिया में, और भी चीजें हैं, ये करियर पैसे पाथवे यहाँ जाना ये वो, यू फॉरगेट टू रियलाइज कि इस फैमिली एक लाइफ के पैकेज में और भी चीजें हैं। करियर इज वन, मनी इज वन, बट देयर आल्सो अदर पैकेजेस विच यू कंप्लीटली एक्सक्लूड राइट आफ्टर ग्रेजुएशन, बिकॉज पूरे 30 साल 20 साल से तो घर पे ही थे ना। तो बंदा अगले साल ये थोड़ी सोचता है कि हाँ कल भी मैं घर पे बैठूंगा, नहीं यार मैंने सोना है, मैं जाऊंगा घूमने, करूंगा ये करूंगा वो करूंगा। ये थोड़ी सोचता है मैंने घर पे बैठ के बस घर में बैठ के बातें करूंगा। कोई भी सोचता है जाने का, सोचता है निकलने का। तो खैर, देन आई रियलाइज्ड वेरी क्लियरली कि दी ओनली फायदा फॉर मी पर्सनली टू मूव टू स्टेट्स वुड ओनली बी फाइनेंशियल, नथिंग एल्स, ओनली फाइनेंशियल। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मुझे याद है अभी भी, जिस प्रैक्टिस में मैं इंटर्नशिप करने गया था, उसने कहा था अब सोचता हूँ कि यार नहीं नहीं अभी नहीं सोचता, इट वाज द राइट डिसीजन। $1.5 लाख स्टार्टिंग सैलरी उस वक्त, अगर 1 साल भी काम कर लेता तो काफी हो जाता। बट एनीवेज, तो और उस वक्त डॉलर भी कम का था। तो दैट इज व्हाट दे ऑफर्ड, बट देन आई रियलाइज के, और उसके बाद उस वक्त आप नहीं सोचते, बट आई डोंट नो कहाँ से अकल आ गई, कोई डिवाइन रेवलेशन थी, आई एम हैप्पी कि वो आ गई। कि आप सोचते हैं कि नहीं मैं कमाऊंगा वहां जाऊंगा और फिर कमा के आई कम बैक, राइट। सो सुना है ना आप लोगों को, नहीं मैं करके वापस आऊंगा। कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। फॉर, मैं आपको बता दूं कि पहले मैं भी सोचता था सब पागल हैं, मैं आऊंगा, 100% आऊंगा। लेकिन फिर मुझे अकल आई कि मेरी शादी नहीं हुई भी, मेरे बच्चे नहीं है, मेरी बेगम नहीं है, राइट।
और उस वक्त था वो जरदारी का टेन्योर का एंड, जब हर वक्त बम फट रहे होते थे। याद है आपको? 10 साल पहले हर रोज बम फट रहे होते थे, एवरी सिंगल डे देयर वाज यूज्ड टू बी अ बम ब्लास्ट। तो फिर मैंने क्या सोचा कि यार अभी तो आई एम हियर, एंड whoever I get married to here knows the circumstances here and they're living here, right? But if I am there and I'm minting money and my kids are going to school aram se and I'm happy, I have a house and everything, vacation, who have no connection with Pakistan, और अब मैं उनको बोलूं जैसे ही वो 5-10 साल के हो जाए, बेटा अब एक काम करते हैं, अब हम पाकिस्तान शिफ्ट हो जाते हैं जी, और न्यूज में नजर आ रहा है ये फट गया, वो फट गया, ये मर गया, वो फट गया, आग लग गई, इसने उसको मार दिया, ये हो गया, डॉलर 500 पहुंच गया, बेटा लेट्स गो, इट्स नेशनलिस्टिक टू गो देयर एंड वी विल वेयर ग्रीन एंड व्हाइट फ्लैग्स, वी विल ईट ग्रीन एंड व्हाइट फ्लैग एंड वी विल लिव इन द ग्रीन एंड व्हाइट फ्लैग, देयर विल बी नो मनी, देयर विल बी नो सिक्योरिटी फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं तो यहीं पे हूं ना, तो मुझे नहीं पता लगता, लेकिन इट इज वेरी borderline unethical or unfair for those kids and those people living in that bubble to take them out of that bubble। अब आओ चलो पाकिस्तान चलते हैं यार, उस वक्त वो पूरी निकाल के ना फिर आप सोचते हैं कि नहीं यार सब सेफ है, मेरे लिए चाह रहे हैं, लेकिन लेट्स नॉट, इनके लाइफ के साथ गैम्बल नहीं करते, अपनी लाइफ तो कहीं भी कर लेंगे, अफ्रीका में काम कर लूंगा। तो देन आई रियलाइज कि यार no, let's not, that is maybe that's the reason why people, not, it's not that they don't want to come back, they can't come back। वो सिस्टम के अंदर इंग्रेन्ड हो जाते हैं हर तरह से, सेफ्टी में और पैसे में। सो आई डेंट कम बैक बिकॉज माई फैमिली वाज हियर। उसका फॉरेन रिएक्शन अगला आपका भी हो सकता है और बाकी लोगों का भी ये हुआ। ऑफ कोर्स आई डेंट टेल माई फैमिली दैट वाज द रीजन आई एम नॉट गोइंग, वरना हर फैमिली चाहती है कि नहीं भाई ये तो होता रहता है, आप अपनी लाइफ करें आगे बढ़े, हर बंदे की अपनी लाइफ होती है, वो रोड ब्लॉक नहीं बनना चाहते पेरेंट्स। सो आई डेंट टेल देम, आई टोल्ड देम मैं क्लियर करूंगा बट आई विल स्टे हियर, मैं एमएससी करके आ जाऊंगा कहीं और से। एनीवेज, सो अगला सवाल ही फौरन यही होता है बड़े लोगों का, सर तो कोई आपके कोई और भाई बहन नहीं है जो ख्याल कर लेंगे घर पे अम्मी अब्बू का और समथिंग, राइट, विच इज कॉमन सेंस, राइट? हाँ, मुझे मेड नहीं रखनी घर पर, आई वॉन्ट टू बी देयर फॉर देम। होंगे घर पे और लोग भी, बट मुझे वहां रहना चाह, मैंने दिल चाह रहा है वहां रहने का। इट्स नॉट लाइक अच्छा घर में शेफ है बट ठीक को मसा है फिर मैं चलता हूँ, नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ ये काम करूँ ना। सो वो एक अलग एस्पेक्ट है। सो देन दैट इज अ पर्सनल डिसीजन, हर बंदे घर के डायनामिक्स अलग हैं। सो देन दैट्स व्हाई आई रियलाइज कि मुझे फायदा सिर्फ पैसे का है। एंड हम हर जगह रिलीजन को नहीं यूज करते। आपका कोई भी रिलीजन हो, ऑल ऑफ अस आर, मैं अपना मुसलमान का बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ अस, एटलीस्ट मी, इफ नॉट मोस्ट ऑफ अस आर कैफेटेरिया मुस्लिम्स। हम एंटर होते हैं बुफे में, नहीं ये नहीं, ये रहते हैं, अच्छा मीजान बैंक ठीक है सही है, अच्छा और यार ये नहीं यार, अच्छा ये रख लेते हैं, वी डिसाइड व्हाट वी गेट टू चूज फ्रॉम आवर रिलीजन एंड लीव एवरीथिंग एल्स, राइट? रोज कोई रिलीजन फॉलो नहीं कर रहे होते, हम ड्यूटियां फॉलो कर रहे होते हैं, राइट? अगर कर रहे होते तो कुछ इंसान बेहतर होते। तो उसमें उसमें रिलीजन हमारे एस्पेक्ट में इस तरह फिट होता है क्योंकि फिर कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसमें एवरीबडी सिंक्रोनाइज इन थिंकिंग अबाउट द रिलीजन। व्हेन समवन डाइज फॉर एग्जांपल, या वन समवन गेट्स सिक फॉर एग्जांपल, सब दुआओं पे आ जाते हैं, राइट? कोई यूनिफॉर्मिंग फैक्टर होता है, आपको कंफर्टिंग में होता है। तो उसमें मैंने एक और चीज पढ़ी क्योंकि ऑफ कोर्स वहां पे मॉनेटरी बेनिफिट बहुत ज्यादा था और यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट तो है ही नहीं ना। वही ख्वारी है जो आप लोगों की अभी शुरू हो रही है। मुझे 8,000 की नौकरी ऑफर हुई थी, मैंने कहा, यार 8,000 और $1.5, 8,000 को अगर मैं सिर्फ 1.5 लाख से ही डिवाइड कर लूँ डॉलर तो छोड़ो तब भी ज्यादा है। लेकिन दैट इज व्हेन द रिलीजन प्लेड इट्स रोल फॉर मी। मुझे समझ आ गई कि यार जितना लिखा हुआ है वो मिल जाएगा, ये नहीं लिखा हुआ कि शिकागो के अंदर डिवॉन स्ट्रीट के अंदर मिलेगा, बोले कि भाई मेहनत करनी मिल जाएगा। मुझे थोड़ी पता है क्या लिखा हुआ है ऊपर। इस वक्त नजर आ रहा है कि वहां पैसे ज्यादा हैं, हाँ, लेकिन अगर वहां पे कोई हेल्थ का मसला हो जाए तो काफी तो आप कुछ नहीं हो पाता ना, अक्सर बाद में आप सुनते हैं कि वहां पे ये हो गया, तो शुक्र है मैं नहीं गया। तो मे बी अल्लाह हैज योर प्लान्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव थॉट। सो लेकिन ये जरूर लिखा हुआ अंडरलाइंग स्टेटमेंट, आप मेहनत करें और बाकी हो जाएगा। हो सकता है मरने से पहले लॉटरी लग जाएगी, लेकिन जितना लिखा हुआ है वो मिल जाएगा अगर बंदा मेहनत करे तो। लाइक ये वो दिस वाज दैट calming effect, all is well, tension na lo and relax. So and I came back and worked 18 hours a day for 10 years. Anyway, so that's the reason I didn't go. But would I make the same decision now? 100% same decision. Well, then, thank you so much, sir, for sharing your story. I'm sure everyone is inspired, and we've
the real talk really helped us because हमें reality check मिला है. हम हाउस ऑफिसर्स हों या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हों, हमें पता होता है अच्छा बाहर कितनी ऑप्शंस है, बट कोई हमें सही से बताता नहीं है बिठा के कि बच्चों को ये हालात है. And you just did that, so thank you so much, sir. यार आई एम सो सॉरी, एक मैं बीच में बता दूं, एक एक दो बातें जो एकदम से मुझे याद आ गई। प्लीज बिल्कुल इंस्पायर होके आपने फोटो कॉपी नहीं करना। मेरा काम है आपको से बताना कि मेरे जो हालात थे उसका मैंने क्या फायदा उठाया और क्या डिसीजन लिया। इससे आपने ये रखना है कि आपके क्या हालात हैं और आपने क्या डिसीजन लेके अलग करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना। मे बी बिल्कुल किसी के सर. घर के हालात ठीक ना हो, नहीं सर ने कहा था रुक जाओ मेरे कहने से नहीं कर ले, या मे बी आपके घर वाले ऑल दे ऑल नो कि यार आर टिकट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज आर डॉटर और आर सन, और उसको मैंने पट्टी पढ़ा दी कि नहीं भाई घर पे बैठ जा। गया, गए, सर ने कहा था नहीं घर पे तो बैठ गए, लेकिन मेहनत भी करनी थी, वो आप यहाँ कर नहीं पाए। सो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट स्केल टू जज फ्रॉम। आई एम जस्ट सेइंग डोंट बी अ शीप, सबका एक ही नहीं है सोल्यूशन। बिल्कुल सर, टू ईच देयर ओन. हर बंदे एग्जैक्टली। पे डिपेंड करता है. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस. वी हैड अ ग्रेट टाइम विद यू. We hope you had a great time with us as well, and your presence truly highlighted our event. Honestly, one of the best lectures, बहुत if शुक्रिया। so, the best lecture of 10th थैंक यू वेरी transfer मच। so far. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी एंड Before, फॉर ऑन संडे। sir, sorry to cut you out. नो Before प्रॉब्लम। marriage ended up, I just want to ask one question from you. Okay, what one advice that you want to give to the fresh graduates and the attendees we have today? कोई एक ऐसी advice जो आप हर fresh graduate को देना चाहेंगे? सोच रहा हूँ एक एडवाइस में ना मैं फंस जाता हूँ। एक एडवाइस चले दो तीन देता हूँ बट इन वन लाइनर्स। नंबर वन, हिम्मत ना हारे एंड हर चीज का सोल्यूशन ढूंढे, प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशंस। इफ यू थिंक यू कैन नॉट मेक इट हियर, गो अब्रॉड। इफ यू थिंक you don't like it in this profession, find a new profession, but find a solution to your problems. That's one, क्योंकि crying does not help anybody, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे भी लोग हैं जो अब भी ग्रेजुएट होके मुझसे ट्रिपल कमा रहे हैं, लेकिन आप सुनते सिर्फ उन लोगों की हैं जो नहीं कमा रहे या जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। क्यों? क्योंकि दे फाउंड आउट कि डॉक्टर फैजान का फॉर्मूला क्या था, वो उन्होंने कंबाइन किया अपने एचओडी के फॉर्मूले के साथ। वो कंबाइन किया उन्होंने किसी और टिप जो यूट्यूब से देखी, और वो हम सबसे बेहतर हो गए। सो ऐसा मतलब नहीं है कि आप यहाँ पैदा हो गए तो गलत पैदा हो गए, अब तो हो गए ना। तो पॉइंट नंबर वन तो सोल्यूशन ढूंढना है। सोल्यूशन ये है कि यार पैदा हो गया 2024 में, ये चीजें जो हम कर सकते हैं और हम ये करेंगे ताकि अब हम सक्सेसफुल हो। टू हो गया। तीसरा, किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे इंक्लूडिंग दिस, जब तक टाइम नहीं गुजरेगा इसमें 5 से 8 साल, यू विल नॉट बी अर्निंग गुड मनी एंड स्टेबिलिटी इतनी नहीं आएगी आपको। दैट्स अ हार्ड रियलिटी ऑफ द प्रोफेशन एंड राइटली सो, बिकॉज पेशेंट केयर जब तक नहीं होगी फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, you won't have constant inflow of patients एंड दैट टेक्स टाइम। तो वो हिम्मत ना हारें, वो सबका स्लो हुआ है, हमारा भी बहुत स्लो हुआ है, आपका भी स्लो होगा, अल्लाह करे आपका हमसे आधे टाइम में हो जाए। बट मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि आई वुड बी वेरी स्केप्टिकल ऑफ गेटिंग ट्रीटेड बाय समवन हु जस्ट हैज 2 year post experience of house job। मैं आई गो टू समवन हु हैज मोर, क्योंकि वो शक्ल पे भी नजर आ जाता है और फिर वो मेच्योरिटी भी आती है आपकी शक्ल पे। आप इतने एक्साइटेड नहीं होते जितना मैं भी एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने में। आपको समझ आ रही है जेंटिस इतना तेज बहुत कुछ बोल रहा हूँ ना अरे भाई नहीं चाहिए, इस बेचारे को लगता है अभी एग्जाम दे के आया और मैं ही पेशेंट हूँ पहला। सो हिम्मत ना हारें, सोल्यूशन ढूंढें, रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अभी भी प्रोस्पेक्ट्स आर वेरी वेरी गुड इफ यू चूज द राइट पाथवे। इफ यू कीप चूजिंग द सेम जो आपके एचओडी ने चूज किया था आपके लिए, अपने लिए, यू विल बी इन अ मेस। क्योंकि वो हजरत अली का भी कॉल आई थिंक वो था कि डोंट ब्रिंग अप किड्स द सेम वे यू वर ब्रॉट अप, बिकॉज दे हैव बीन ब्रॉट अप बॉर्न इन अ डिफरेंट एरा। तो अगर आपको समझ आ गई कि यार शाम में क्लिनिक चलाने में ही है कुछ, देन यू विल एक्ट अकॉर्डिंगली। सो ये एंड आखिरी बात ये है कि सच बोलें ताकि इवेंचुअली नींद आपको आए। ये आप जब थोड़े बड़े होंगे, थोड़ा टाइम गुजरेगा तब आपको समझ आएगा। यूजली इस वक्त आपको बस ये लगता है कि सच बोलने से उल्टी पड़ जाती है। आई एम सॉरी बट दोज आर दी ऑन टॉप ऑफ माई हेड, ये
चीजें आ रही हैं। Thank you so much, sir, for your time. Over to you, Maraj. Well, with that, we end our session with Dr. Faizan. Thank you so much, sir, for joining us. You're most And welcome. we can call you for our future events as well. Allah Hafiz. Inshallah.